Good morning, sir. Good morning, sir. Good morning, sir. So guys, have you completed today's Saturday, right? I believe you must have completed your Today's Friday. cumulative Today's practice one. Friday. Today's Friday, Oh, almost. I'm sorry, today's Friday. So is there anything left still? No, sir. Two, three problems. No, Sir, sir. only Problems one left. problem is Okay. left. Go in organized way and complete it ASAP, right? Whatever doubts you will have, I'll ask you tomorrow on the group. I'll write the solution for that, right? Or I'll discuss it. I'll discuss it in other time, right? I'll give some time for that. Okay. Anyways, guys, what we were doing in the last lecture? Sir, function as a rule. Function, sir. Yes. Function as a rule, sir. We finished on that. Representation of function, I guess you are talking about. Yes, sir. Yes, sir. Before represent. Okay. So how much we have done in representation? 1, 2, 3, 4. How many? 4. Four done. Function as a rule. Function as a rule. Yeah, function as a rule we have done. Arey, haan, I remember now. Function as a rule we have done, and I have taken one example. Fx is equal to x minus 1. Am I right? Yes. Sir. Yes, Yes, sir. We also took X is equal to cos X. cos square x, Belongs to 0 to sin 1. square x and Yes, sin yes, x. guys. Let us start. Today is the day when you guys will solve the previous times chapter, like equation in equation. I told you, right? Guys, Yes, sir. remember one thing. When it is written in any book or in any question paper, this part, real valued function. What do you mean about this, guys? How do you identify what has been written? He's saying a real valued function. A real valued function. What do you mean about this, guys? Sir, the values which are real numbers. The values which are real. Okay. Someone else? Guys? Someone else? A function defined for all real values. Function defined for all real numbers. Both the Okay. input and output will be real values. All right. हितैषी बोल रही है कि The values output will be real number. like real. Devanshi is saying something else. All the values are real numbers. Na? All the values are real number. Okay, but remember one thing. See, there are few things which are obvious, and so like suppose somebody is writing this, then this is obvious he is written to, right? But Yes, sir. sometimes when somebody is writing this, then a mathematician or a student studying in mathematics part, he will understand that this particular part is belongs to. Yes, sir. Might be some other student will say, sir ने by mistake e जो है ना उसकी शक्ल बिगाड़ दी है ना? Yes, sir. हो सकता है. So guys, in calculus, when he writes a real valued function, this implies one thing, that he is not using any imaginary value during the solution, during the course of studies of that particular question. Point number one. Point number two, in any real valued function, if codomain is not given, we treat it as a real number. I'll repeat it here. In a real, now I'll change a bit actually. I will write it like this. In a real valued function, if codomain is not given, take it R. Generally function define करता है तो codomain दे देता है बच्चों. But if it is not given, take it R. And domain is related with, अगर बच्चों फोर्थ वाली फॉर्म क्या थी? रिप्रेजेंटेशन ऑफ फंक्शन में फोर्थ फॉर्म क्या थी बच्चों? Function as a rule. Function as a rule. So domain is related with rule given
as function. बच्चों real valued function doesn't imply all real values. Real valued function implies ये जो रूल दिया हुआ है उसमें फंक्शन क्या होगा. For example, a real valued function given by fx is equal to root x. बच्चों domain is fixed. What is the domain? X R greater positive than equal to- union Positive union Zero. zero. 0. Yes. R positive union 0. बच्चों, what will be the codomain here? R. Or Remember, we should never leave anything unturned. That what you are reading in NCERT or any other book, where you understand, अरे यार इसका मीनिंग शायद ही होता है. शायद कुछ भी नहीं होता है कैलकुलस में. एग्जैक्ट होता है जो कुछ होता है. जहां जो लिखा हुआ है उसका मीनिंग अधूरा कहीं दिया हुआ मिलेगा, ऐसा मत समझो. इट्स अ मैटर ऑफ चांस कि वो उस पर्टिकुलर बुक में अधूरा दिया हुआ है. जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर आएगा उसमें एग्जैक्ट लिखा हुआ है. मतलब एग्जैक्ट लिखा हुआ से क्या मतलब हुआ बच्चों? उसने लिख के दिया रियल वैल्यूड फंक्शन. अब तुम चक्कर खा गए यार. रियल वैल्यूड का फंक्शन का मतलब तो डोमेन रियल वैल्यू होना चाहिए, कोडोमेन भी, सब कुछ रियल होना चाहिए, कुछ इमेजिनरी नहीं होना चाहिए. तो पहला सेंटेंस सही है, सब कुछ रियल होना चाहिए, गलत है. मतलब सब कुछ रियल होना चाहिए ये गलत है. नहीं है ना बच्चों, यहाँ पे सब कुछ रियल नहीं है ना, राइट. लेकिन दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, कुछ इमेजिनरी नहीं होना चाहिए. मतलब कहीं में कोडोमेन या डोमेन में इमेजिनरी कुछ नहीं होना चाहिए. इमेजिनरी कौन बच्चों आएटा वगैरह पढ़ा है ना? Yes, sir. रियल वैल्यूड फंक्शन मींस आइटा नहीं होना चाहिए. बच्चों रियल वैल्यूड फंक्शन बोलेगा ना तो डोमेन को कभी भी आई अपनी तरफ से मत ले लो. अगर वो दे रहा है कि इसका डोमेन आई है तो अलग बात है, अदरवाइज आई मत ले लो उसको. आर यू क्लियर विद दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन? रियल वैल्यूड फंक्शन लिखा होगा तो क्या आएगा? किसी को कोई डाउट है इसमें? Sir Arnav, sir, I didn't understand how the codomain here is greater than the domain. Like codomain is all real values. You will understand it this way now. I'll write a word and you will understand everything. Okay. Do you want me to clarify the definition? So I didn't get you. When we write definition, right? We need to understand and learn it. Right? We can't put a logic behind it because we are writing a definition. This is a point. You can call it as a triangle and you can fight with me for a number of days. But what can I say? This is a point. It's a definition actually. So, हाँ बोलो. इस डेफिनेशन का सेकंड स्टेटमेंट एक बार फिर से बता सकते हो? बेटा मैं ये कह रहा हूं किसी भी रियल वैल्यूड फंक्शन का डोमेन या कोडोमेन इमेजिनरी नंबर नहीं होना चाहिए. डोमेन रूल पे डिपेंड करता है, कैसा रूल लिखा हुआ है, राइट. और कोडोमेन हमेशा आर लेना होता है इफ नॉट गिवन. अंडरस्टूड? राइट. अब बच्चों क्या होता है, मतलब अब जिस सीक्वेंस में हम लोग आगे जा रहे हैं उसमें क्या होता है, पूछता है फाइंड डोमेन ऑफ गिवन रियल वैल्यूड फंक्शन. बच्चों ये नहीं भी लिखेगा तब भी चलेगा, समझ लो. रियल वैल्यूड फंक्शन अगर नहीं लिखा है तब भी डोमेन लिखेगा तो चलेगा. एग्जाम्पल बच्चों एक चीज बताओ, एक फंक्शन f1 है, इसका नाम तुम्हें पता है ना, f1 का मतलब f1 एक रूल है, और दूसरा फंक्शन है f2. इसका डोमेन ऑफ f1 है, इसका डोमेन ऑफ f2 है. बच्चों ये हो गया डोमेन ऑफ f1, डोमेन ऑफ f2. तो बच्चों पहला पॉइंट, डोमेन ऑफ f1 प्लस f2, डोमेन ऑफ f1 माइनस f2. पहला क्यों लिख रहा हूं, सब एक साथ ही लिखते हैं ना, f1 माइनस f2. बच्चों ये सबस्क्रिप्ट में डोमेन डी लिखा, सबस्क्रिप्ट में ही है ना. डोमेन ऑफ f1 इंटू f2, डोमेन ऑफ f1 अपॉन f2. बच्चों
इसका जो डोमेन होगा वो होगा df1 इंटरसेक्शन df2, राइट। इसका भी सेम, इसका भी सेम बच्चों। इसका डोमेन होगा d ऑफ f1 इंटरसेक्शन d ऑफ f2 यूनियन, यूनियन नहीं बच्चों, यूनियन नहीं। बताओ बच्चों, मैंने लास्ट टाइम बताया था ये किसका सिंबल है? Similarity. नो 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 नो, सिमिलरिटी का सिंबल जो है ना बच्चों, सिमिलरिटी का सिंबल तो ये है, लेकिन जब सेट थियरी हम लोग लिख रहे होते हैं ना बच्चों, तो सेट थियरी में ये सिंबल देखो, दो सिंबल्स की भी अलग अलग पहचान है अपनी जगह में। सेट थियरी में ए सिंबल एक्सक्लूजन का सिंबल है बच्चों, excluding your, if you want to exclude something, then this part we utilize, excluding values of x such that f2 is equal to 0। बताओ बच्चों, f2 अगर 0 हो गया तो ये फंक्शन डिफाइन होगा क्या? नहीं सर, Not उनको भी different. उनको भी एक्सक्लूड करना पड़ेगा। यानी f1 का डोमेन निकालो, f2 का डोमेन निकालो और उसको एक्सक्लूड कर दो। बच्चों f1 का डोमेन निकालने का और f2 का डोमेन निकालने का मतलब क्या है, इसको समझने का कोशिश करो। सब लोग ध्यान से इस चीज को समझेंगे। बच्चों ध्यान दो, क्वेश्चन नंबर 1 इजी है क्वेश्चन, √x प्लस √-x। बच्चों इसका डोमेन बताओ क्या आ गया? Positive real. All positive. Real. बच्चों इसका डोमेन बताओ क्या आ गया? All non-positive. रियल नंबर्स। तो बच्चों पूरे फंक्शन का डोमेन क्या आ गया बताओ? Zero. Real. इसको f लिख रहा हूँ, डोमेन ऑफ f क्या आ गया बच्चों? 0. Zero. एक ही एलिमेंट लिखना होता तो सेट में लिखते हैं ना बच्चों, ये Yes, सही है कि नहीं? Yes, सही है sir. कि नहीं? अच्छा बच्चों, इसमें अगर मैं यहाँ माइनस लगा दूं तो बताओ इसके आंसर में चेंज आएगा क्या? तो भी 0. नहीं होगा, वो भी 0 होगा। और बच्चों इसमें माइनस की जगह में अगर मैं √x इंटू √-x लगा दूं तब डिफरेंस आएगा तो क्या? भी 0 आएगा. सही होगा। तब भी Zero डोमेन ऑफ आएगा, f zero यही ही आएगा आएगा। बच्चों, इन तीनों का आंसर यही आएगा। Yes. समझ में आ रहा है? सिर्फ 0 ही Yes. इसको सेटिस्फाई करता है। लेकिन बच्चों Yes, sir. अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं, √x अपॉन √-x, बताओ इसका Null डोमेन set. क्या आएगा? Not Null set. Null set. Domain of f is null set। बच्चों इस नल सेट को ऐसे भी लिखते हो ना, याद है कि नहीं है? ऐसे भी Yes, लिखते sir. हैं खाली ब्रैकेट। और इसका मतलब नल सेट। सब कुछ पता होना चाहिए, सब कुछ नोटबुक में होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि किसी दिन किसी बुक से कुछ पढ़ते नजर आए और वहां जो लिखा हुआ है उसको इसमें कहीं डिफरेंस नजर आ जाए। डिफरेंस यहां से नहीं देखना है, यहाँ जो है वही सही है, जो बुक में है उसमें छोटा मोटा चेंज करना पड़े तो आप अंडरलाइन करके मार्क कर सकते हो। इट्स नॉट रिटन इन द बुक लाइक दैट। अच्छा, हमारे 3 को-होस्ट है आज। एक को-होस्ट तो शायद डिस्चार्ज कर गया इधर से, कार्तिक है, फिर ऋषा नहीं है, SHA नहीं है, रिसा। हाउ डू यू प्रोनाउंस योर नेम माय डियर? Yes, sir, it's Risa. Risa. Okay. So Karthik and Risa. So who is going to take the picture out of the 2? अरे So I can take. तू लैपटॉप पे है क्या अभी? हाँ, दिक्कत तो नहीं आएगी? नहीं. चल ठीक है। पिक्चर स्क्रीनशॉट बच्चों, स्क्रीनशॉट फॉर बोर्ड 1। किसी को कॉपी करना है तो कॉपी करो, 2 मिनट। सर वो लास्ट लाइन नहीं दिख रहा, कैन यू मूव द कैमरा? अच्छा, लास्ट लाइन किसी को भी नहीं दिख रहा क्या? लास्ट लाइन बच्चों दिख रहा है सर। सर दिख रहा है। बराबर. वो म्यूट तो बराबर दिख का वो लाइन आ रहा था इसलिए नहीं दिख If you रहा। press अभी alt आ on गया the- ना, अब आ गया, अभी आ गया ना, मैंने कैमरा थोड़ा मूव किया। नल सेट के नीचे Yes. अंडरलाइन इज द लास्ट वन, दिख रहा है ना ये? सर अच्छे अरे से पता है दिख रहा है. मेरे लैपटॉप पे जो दिखता है वो तो आपको पक्का दिखता है। मेरे लैपटॉप पे स्क्रीन थोड़ा Yes, sir. गायब होता है, राइट? तो मेरे लैपटॉप पे अंडरलाइन दिख रही है अभी, इसके नीचे नहीं दिख रहा, ये वाला पोर्शन नहीं दिख रहा। ये देखो, ये आपको दिख रहा है क्या? यस सर, ये दिख रहा है. सर दिख रहा है. हाँ, देखो ना, ये पकड़ में आते हैं ना चीजें। चलो बच्चों फटाफट इसका वो ले लो, एक स्क्रीनशॉट। बच्चों आज का रिकॉर्डिंग गारंटीड मिलेगा, कह नहीं सकते, बता देता हूँ आपको। आज का रिकॉर्डिंग हो सकता है 10 दिन बाद तुम्हारे उस पे आए। रिकॉर्डिंग इज नॉट परमानेंटली टू बी गिवन,
सर स्क्रीनशॉट किसी का हो गया और किसने लिख लिया, मतलब ऐसा कोई स्टूडेंट है जिसने नहीं लिखा अभी? सर सर आपका सर स्पॉटलाइट में कैसे लेते हैं आपकी स्क्रीन को? मुझे नहीं पता, तू ले ले यार। पिन पिन कर दो। राइट क्लिक करके पिन कर राइट क्लिक ऑन वीडियो पे जाकर मैंने अपना वीडियो पिन किया हुआ है, तू अपना वीडियो सर, आप पिन कर दे। सर आप खुद स्पॉटलाइट कर दीजिए ना स्पॉटलाइट वीडियो। किया नहीं है तो हमने ही पिन किया। हाँ यस सर ये आपने जो राइट में रूल्स लिखे वो हर फंक्शन को मतलब हर इसमें वो फॉर्मूला टाइप है ना वो जो हाँ रूल्स है बेटा, वो? हाँ 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 हाँ। डन? कैन आई रेज दिस बच्चों? क्या लिख रहे हो? यस सर सर हाँ बोलो बोलो। सर ये D जो F1 प्लस F2 बच्चों मेरा एक रिक्वेस्ट है, तुम लोग जब क्वेश्चन पूछो ना तो एक बार हैंड रेज कर दिया करो, ताकि सारे क्वेश्चन जैसे 1 बाय 1 नंबर नाम लेके मैं पूछता हूँ, है ना? अदरवाइज कोई कुछ बोल रहा है, कोई कुछ बोल रहा है। हाँ तो सिर्फ बोलो। यस सर। सर मुझे डाउट ये है कि सर ये जो आपने लिखा है D F1 प्लस F2 इज इक्वल टू D F1 इंटरसेक्शन D F2, सर ये बाय डेफिनेशन है या इसके पीछे कोई ऐसा? तू सोच, तुझे मान लो ये ग्राफ बनाना है, y इज इक्वल टू रूट x का ग्राफ बनाना है, यस राइट? तो x की पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ग्राफ बनेगा, से यस और नो? यस सर पॉजिटिव वैल्यू। अच्छा, अब तू इसमें अंडर रूट माइनस x ऐड कर दे। अब बता पॉजिटिव वैल्यूज के लिए ग्राफ बनेगा? नहीं सर, वन तो अब नेगेटिव वैल्यूज के लिए ग्राफ बनेगा। तो बता इसका ये- पूरा ये- ग्राफ बनाने के लिए, इसका पूरा ग्राफ बनाने के लिए x की कौन सी वैल्यूज काम आएंगी? सर दोनों का एक साथ? हाँ दोनों का एक साथ, दोनों का एक साथ को सेट थ्योरी में क्या बोलते हैं? सर इंटरसेक्शन सर। ओके समझा सर। यस सर, यस सर। पता है बच्चों इसका ग्राफ कैसे बनेगा? इसका ग्राफ ये बनेगा, x इक्वल टू 0 पे y इक्वल टू 0। यस सर, एक पॉइंट। ग्राफ थैंक यू सर ग्राफ भी इतना ही बनेगा ना, because there's no हाँ, other इतना ही value बनेगा, which is कुछ नहीं। defined. हाँ पता है, जिस वैल्यू के लिए डिफाइंड है उतना ही ग्राफ बनेगा, पूरा ग्राफ नहीं बनेगा। ग्राफ बना के डोमेन, अच्छा से ग्राफ बना के डोमेन कैसे दिखाते हैं बताओ? X values को देख के जहाँ पे Y value है। हाँ x का वैल्यूज के लिए y अगर मिल गया तो डोमेन में आ गया, x के किसी वैल्यू के लिए y नहीं मिला तो डोमेन में नहीं आएगा बच्चों। आई बात समझ में? यस सर। यस सर ये इरेज कर दूं? और सर कुछ कुछ x के वैल्यू के लिए 2 y की वैल्यू है तो भी वो डोमेन में नहीं होगा। अबे गधेड़ा, आई हैव टोल्ड यू दिस लास्ट टाइम, ये डेफिनेशन में किया था हम लोगों ने। हाँ एक सर, x ये के लिए अगर y का वैल्यू ज्यादा आएगा तो वो फंक्शन नहीं होएगा। यस फ्लैगशिप बैच से मैं ये एक्सपेक्ट कभी नहीं करूंगा कि जो लास्ट लेक्चर में पढ़ाया हुआ है उसको दोबारा पूछो। हमेशा लेक्चर बनाने का तरीका बताया था स्टार मार्क वाला, हमेशा प्रीवियस लेक्चर्स देख के आओ, दिमाग में वो रहना चाहिए। यस वो तो डोमेन में नहीं होगा ऑब्वियसली, वो फंक्शन ही नहीं है तो डोमेन किस बात का, बराबर ना? वही सर। हाँ चलो बच्चों इसको इरेज करते हैं। सर वो सिमिलैरिटी साइन को क्या बोलते हैं, आप एक बार रिपीट कर सकते हो? बेटा एक्सक्लूजन, Including. ओके सर, थैंक यू। एक्सक्लूडिंग। इसको माइनस भी तेरे को अगर अच्छा लग रहा हो ना तो इसको माइनस भी लिख देना, हालांकि ये करेक्ट सिंबल नहीं है, तुझे किसी भी मैथमेटिक्स की बुक में ये नहीं, गाइड में बहुत जगह लिखा हुआ है, लेकिन किसी टेक्स्ट बुक में ये लिखा हुआ नहीं मिलेगा बेटा, माइनस साइन, ठीक है? ओके सर। हाँ हाँ सर। इसको इरेज ही तो करने वाला था मैं से। अच्छा बच्चों, आज का दिन तुम्हारा बड़ा ऐसा एग्रेसिव सा निकलेगा, इन द सेंस कि तुमने जो कुछ किया है ना वही तुम लोग रिवाइज करने जा रहे हो, प्रोवाइडेड
तुम लोग को सारी चीजें पिछली वाली याद है। चलो बच्चों मुझे बताओ डोमेन में सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट, लॉग ऑफ, बच्चों यहाँ कुछ लिखा हुआ है, एफ ऑफ एक्स का मतलब कुछ लिखा हुआ है, और बच्चों इसका बेस जो है ना वो है जी एक्स। बताओ बच्चों इसका डोमेन कैसे निकालते थे, किया है ना ये? हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. Greater than zero. Then zero. ग्रेटर देन जीरो, राइट? जी एक्स Yes, sir. Greater than zero. तो Not not equal equal to to one. 1. एंड Equal to जी 1. एक्स नॉट इक्वल टू 1, किया है ना ये? Yes, हाँ sir. sir, yes. याद है. ये इक्वेशन 1 और ये इक्वेशन 2, डोमेन ऑफ एफ, देखो इसको नाम दे देते हैं एफ ऑफ एक्स, है ना? तो डोमेन ऑफ एफ क्या हो जाएगा बच्चों? 1 इंटरसेक्शन 2, बराबर है ना? इसमें गलती मत कर देना कभी भी, Yes, sir. Sir. ठीक है? सर उसको कोई और नाम देना पड़ेगा ना। सर एफ ऑफ एक्स फिर वो दो बार एफ ऑफ दो बार एफ ऑफ एक्स ले लिया सर, फिर वो लॉग लॉग सर यू नीड टू नेम इट डिफरेंटली. माफ कर दे हाँ. भाई, ठीक है? ये एच ऑफ एक्स ले ले, तो इसको भी एच लिखना पड़ेगा। गलतियां तो ऐसे पकड़ते हो, गुड, ठीक है, मैं अलर्ट रहूंगा अगली बार से, ओके? वैसे ठीक पकड़ा तुम लोगों ने, इसको भी एफ एक्स और उसको भी एफ एक्स नाम दे नहीं सकते, ये कभी कभी ब्लर होता है। एक मिनट, बीच बीच में स्क्रीन ब्लर हो जाता है। अब कभी सही है। कभी, अरे वो बट हम खुद से लिख सकते हैं, हम खुद से लिख सकते हैं सर एक बार सुनने के बाद तो फिर हाँ कभी कभी होता है। उस कभी कभी के लिए डिजिटल बोर्ड पे जाना, जब तुम बोल दोगे तो चला जाऊंगा, अदरवाइज इधर ठीक लग रहा है मुझे। बच्चों ध्यान दो इधर, ये वाला पार्ट फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकंड पार्ट, बच्चों एक चीज बताओ, 2a लिखा है तो इसको 2b लिखते हैं ना, वरना फिर कोई बोलेगा सर 2a क्यों लिखा है फिर 2b। बच्चों एक चीज बताओ, साइन, मैंने कल भी पूछा था ये तुम लोग को, साइन थीटा इज इक्वल टू 3/2 पॉसिबल है क्या? नहीं। Sir. रेंज है उसका. नॉट पॉसिबल. नहीं. पॉसिबल नहीं है ना, पॉसिबल नहीं है ना? नहीं, sir. थीटा इक्वल टू साइन इनवर्स 3/2 पॉसिबल है क्या? नहीं सर. नहीं पॉसिबल है. नॉट पॉसिबल, पक्का है ना बच्चों? यस सर बच्चों एक पक्का. चीज बताओ, साइन इनवर्स एक्स का डोमेन क्या होगा? Minus -1 to 1. -1 to 1. x बिलोंग्स टू -1 to 1। बच्चों पकड़ में आया ना ये चीज? यस अच्छा, सर. एक चीज बताओ बच्चों, अच्छा एक चीज बताओ बच्चों, अगर ऐसा होता साइन इनवर्स ऑफ एफ एक्स, इसका डोमेन निकालना होता तो अपन क्या करते, एफ एक्स को उठा के -1 और 1 के बीच में डालते और यहाँ लिखते फाइंड एक्स। यस सर। डोमेन मिल जाता ना बच्चों, क्या बोलते हैं? Yes, sir. हाँ सर. बट एफ एक्स तो साइन इनवर्स एक्स है ना. हाँ साइन इनवर्स ऑफ एफ फिर एक्स। गलत। कोई गधेड़ा, इधर कहीं लिखा, ओ यहाँ एफ एक्स साइन इनवर्स एक्स लिखा है। हाँ सर फिर यस सर उसके लिए. अरे यार ऐसे मत करो ना प्लीज, ठीक है? ये अलग एग्जांपल है ना, ये एग्जांपल अलग हो गया ना? यस सर। चलेगा चलेगा। साइन इनवर्स एफ एक्स में एफ एक्स शुड बी बिटवीन -1 and 1, फाइंड एक्स इज रिक्वायर्ड डोमेन, इज रिक्वायर्ड डोमेन। बच्चों क्लियर है ना ये? यस सर। अच्छा अच्छा बच्चों थोड़ा ध्यान देना, तुम लोग को ये चीजें जो कन्वर्सेशन में जा रही है ना, उस कन्वर्सेशन को स्मार्टनेस में कन्वर्ट करना है जब क्वेश्चन लिखूंगा तब। बच्चों cos इनवर्स x का डोमेन बोलो क्या आएगा? X belongs to -1 to 1. -1 to 1। tan इनवर्स x का r होएगा ना? हाँ सर. tan इनवर्स x पे x को कुछ भी डालो, y का वैल्यू इंफिनिटी से -इंफिनिटी होता है। tan x का ग्राफ याद है ना बच्चों? हाँ सर. हाँ सर हाँ, याद है ना सर, याद याद है. है। tan इनवर्स x और cot इनवर्स x दोनों का डोमेन -इंफिनिटी टू +इंफिनिटी। Yes, पता है ना sir. बच्चों? Yes, sir. बच्चों सेकंड वर्स में गड़बड़ होती थी ना, सेकंड वर्स x में क्या होता था? -1 to 1 नहीं होता था. Minus one. This is -1. -1 नहीं होता था, Including. ऐसा नहीं है। -इंफिनिटी टू -1 क्लोज। Yes, अच्छा sir. बच्चों हाँ, sir. close का मतलब क्या हुआ? -1 -1 included. हाँ सर. -1 included. राइट। अच्छा सेकंड वर्स x और cosec इनवर्स x का डोमेन पता है ना बच्चों? -इंफिनिटी sir. से -1 और 1 से infinity 1 1 से inclusive। इंफिनिटी। सब बच्चों को क्लियर है ना? सब बच्चों को? यस सर 100% क्लियर। ऑलराइट, तो बच्चों इधर एग्जांपल, बच्चों ये fx यहाँ लिखा हुआ है,
ये fx यहाँ लिखा हुआ है, मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एग्जांपल है fx इज इक्वल टू sin इनवर्स x into cos इनवर्स x into tan इनवर्स x into cot इनवर्स x into sec इनवर्स x into cosec इनवर्स x. डोमेन -1 minus 1 and 1. minus 1 and 1. बच्चों समझ में आ गया ना कहाँ गड़बड़ है? Yes, sir. कॉमन एलिमेंट लेने हैं ना, कॉमन एलिमेंट Yes, लेने sir. हैं ना। हाँ, So- तो देखो बच्चों ध्यान दो, यहाँ जहां मैं सर्कल लगा रहा हूँ वो तो आर है, ये भी आर है, राइट? Yes, Yes, sir. sir. इसमें जो इन दोनों का जो डोमेन आ रहा है बच्चों, वो कॉमन डोमेन कितना आ गया बताओ? Minus 1 to 1. क्लोज इंटरवल आ गया। और बच्चों इन दोनों का जो कॉमन डोमेन आ गया वो कितना आ गया? -1 1 to infinity. तो बच्चों कॉमन डोमेन क्या आ गया बताओ? Minus 1 and 1. Domain of f is equal to only two values, Minus 1 and 1. 1. Yes, sir. बच्चों समझ में आ गया ना ये चीज? Yes, sir. समझ गया सर। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ, अगर इसमें मैं tan इनवर्स x और cot इनवर्स x हटा भी दूं तब भी फर्क नहीं पड़ेगा ना बच्चों? नहीं पड़ेगा। Yes, sir. नहीं पड़ेगा। अच्छा बच्चों, अगर इसमें sec इनवर्स x हटा दूं तब फर्क पड़ेगा क्या? नहीं। No, sir. नहीं सर, cos तब cosec inverse इनवर्स है। x कवर कर लेगा। लेकिन बच्चों अगर sec इनवर्स x और cosec इनवर्स x दोनों हटा दूं तब हो जाएगा -1 to 1. तो ये Brackets -1 to 1 लिखा है ना बच्चों, ये -1 to 1 ऐसे क्लोज इंटरवल आ जाएगा, पता है ना? यस Yes, sir. Yes, sir. तो बच्चों मुझे ये बताओ कि sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x इसका डोमेन क्या होगा? ड्रॉ ग्राफ ऐसा पूछा उसने। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए पहले तो x कंफर्म करना पड़ेगा बच्चों। x कंफर्म करने के लिए एक बात बताओ, ये -1 to 1 है, माइनस Yes, yes sir. or no? -1 to 1. और बच्चों ये भी -1 to 1 है, say yes or no? Yes, sir. तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या आ गया बच्चों? Minus 1 to 1. 1 to 1. बच्चों cos इनवर्स x एक एंगल, सॉरी sin इनवर्स x एक एंगल ही तो है बच्चों। Yes, sir. हाँ सर। Yes. अरे बाबा x का वैल्यू 1 डालोगे तो sin इनवर्स 1 π/2 हो जाएगा, एक एंगल ही तो हुआ बच्चों। Yes, sir. Yes, sir. अगर मैं sin इनवर्स x को थीटा ले लूं तो x sin थीटा बन गया, से यस और नो बच्चों? हाँ Yes, सर। yes, sir. तो बताओ इस sin थीटा को मैं cos π/2 माइनस थीटा लिख सकता हूं क्या बच्चों? यस सर। Yes, sir. तो बताओ बच्चों cos इनवर्स x क्या बन गया? π/2 π/2 माइनस -2 थीटा। तो बच्चों बताओ y क्या बन गया? sin इनवर्स x को क्या लिया हम लोगों ने? थीटा लिया है ना? Theta. और cos इनवर्स x को क्या लिया है? π/2 minus Π/2 minus आंसर कितना आ गया? Π/2. π/2. तो बच्चों एक बात बताओ, x का वैल्यू -1 से 1 ही रहेगा, y का वैल्यू कितना आएगा इसके लिए? Π/2. Π/2. π/2। तो ग्राफ कैसा बनेगा बच्चों इसमें? इसका ग्राफ बन जाएगा y is equal to π/2. y is equal to π/2. This is -1 -1 to 1. स्ट्रेट लाइन नहीं बनेगा, लाइन सेगमेंट बनेगा, सोच समझ के बोलो। हाँ वही सर, Yes, sir. -1 to 1 में ही रहेगा। हाँ -1 इसके बाहर- to 1। अच्छा समझ में आया क्या? Yes, Yes, sir. समझा। ग्राफ ऑफ और ये हाइट कितनी है? π/2। ग्राफ ऑफ sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, डोमेन इज -1 to 1। बच्चों कोई मुझे बता सकता है इस फंक्शन का रेंज क्या होगा? रेंज 1 Π/2. Π/2. रेंज किसको बोलते थे? x की वैल्यूज के लिए y को किस का एरो लगा, वही तो रेंज होता Yes, है। sir. हाँ सर। π/2 आ गया। रेंज क्या है इसका? एक ही एलिमेंट है बच्चों। π/2. हाँ सर। तो इधर लिखते हैं बच्चों इस चीज को हम लोग, डोमेन ऑफ f इज इक्वल टू -1 to 1। अब ये डोमेन ऑफ f ऐसे लिखना तो करेक्ट है, इसको ऐसे लिखते हैं बच्चों, रेंज ऑफ f। बताओ क्या है? π/2. π/2। बच्चों समझ में आया कि नहीं आया? बताओ। यस समझ में Yes, sir. समझा सर। थोड़ा, अरे ये थोड़ा वाला दोबारा पूछो, थोड़ा आया तो। अच्छा समझ में आया बोला था क्या? तूने क्या बोला था? थोड़ा बोला था क्या किसी ने? आई हर्ड रॉन्ग। एकदम क्वाइट। कॉपी फटाफट।
Yes, can you hear me? अच्छा, Yes, sir. तन्मय झा, you want to ask something? Yes, sir. अच्छा, Sir, कॉपी करते रहो, he is asking something. हाँ, तन्मय बोल बेटा. sir, sin inverse f of x में जो हमने लिया function, so that function is x का function है, x as input. हाँ, x is input हाँ, है, तो उससे fx कुछ आंसर आएगा, वो fx कैसा होना चाहिए? हाँ सर, अगर वो f of x का input होता then only f of x would have been the domain, right? Yes. Okay, sir, thank you. So हमें ना ट्रिगो सर अर्नव अर्नव हाथ ऊपर कर दोगे तो क्या हो जाएगा? हाँ अर्नव बोल बेटा. आई गेस सर ट्रिगो पढ़ाते वक्त हमें जीकेएम सर ने कुछ तो फॉर्मूला कराया था ये रेंज के लिए sin थीटा प्लस cos थीटा के लिए व्हेन बिकॉज ही सेड कि दोनों का वैल्यू डिफर करेगा, मतलब लाइक sin 30 एंड cos 30 किया तो वैल्यू डिफर करेगा, इसलिए कुछ तो रेंज का फॉर्मूला सिखाया था, वो यहाँ एप्लीकेबल होएगा कि नहीं होगा? एप्लीकेबल होएगा वो. जब हम फंक्शन में आगे धीरे धीरे पढ़ते चले जाएंगे ना, तो ऐसे बहुत सारी नई चीजें हम लोग को सीखने को मिलेंगी. जैसे तुम लोग को पिछले 7 दिनों में मिली हैं, 6 दिनों में, सॉरी संडे नाइट आ गया था ना शीट, तो पिछले 6 दिनों में जो तुमने स्ट्रगल किया है प्रॉपर्ली, आई रियली रिस्पेक्ट योर स्ट्रगल. आई मीन आई कैन सेंस, जब मेरी कुछ बच्चों से बात होती है या ग्रुप पे, मैं तुम लोग को ग्रुप पे, वैसे तुम्हारा ज्यादा डिस्कशन अभी तक नहीं है, नहीं 3 ईयर का है. हाँ 3 ईयर का तो जबरदस्त है, 3 ईयर तो एकदम ऑसम, उन लोग का शीट हो गया है पूरा, राइट. तुम्हारा है लेकिन कम है. मैं बता रहा हूँ कि जो एफर्ट तुम ले रहे हो, वो एफर्ट तुम्हें 3-4 वीक्स में पता लगेंगे कि यस क्या रिवीजन हो रहा है. शानदार बच्चों. आगे आने वाले 4 से 5 लेक्चर में बहुत सारी पुरानी चीजें बोर्ड पे ऐसी क्लियर होंगी तुम लोग को, जिसमें पता लगेगा कि ये रेस्ट्रिक्शंस क्यों लगाई जा रही हैं. फॉर एग्जांपल बच्चों एक बात बताओ, साइन इनवर्स 1/2 की वैल्यू क्या होती है? 5/6 प्रिंसिपल वैल्यू होती है सर. प्रिंसिपल वैल्यू प्रिंसिपल sin वैल्यू inverse 5/6 क्यों नहीं हो सकती? बताओ. 5/6 तो साइन इनवर्स x की रेंज होती -π/2 से π/2 ही होती है. क्यों साइन So इनवर्स like की principal range value उसके बाहर वो Principal range. तो क्या होती है? प्रिंसिपल वैल्यू क्या होती है? मतलब क्यों साइन इनवर्स x की रेंज -π/2 to π/2 ही रखी है? कोई लॉजिक है? बाद में तो रिपीट उसके बाद उसमें पूरा ग्राफ आ जाता है. रिपीट करता है तो मतलब रहता है तो सर रिपीटिंग फैक्टर ऐड कर सकते हैं प्रिंसिपल साइन वैल्यू. इनवर्स हाफ का वैल्यू एज अ फंक्शन डिफाइन नहीं होता वो. सुनो ना यार, मेरी बात तो सुनो. साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू 2π + π/6 क्यों नहीं लिख सकता मैं? सर लिख सकते हो तो जो सेम ही होगा ना, 5π/6 भी होगा. π/6 जो वैल्यू है वो प्रिंसिपल फंक्शन मतलब प्रिंसिपल रेंज से निकाल लिया हम लोगों ने, और उसके बाद रिपीटिंग फैक्टर ऐड कर सकते हैं हम लोग. ग्राफ तो पीरियोडिक है ना. हाँ पीरियोडिक है. साइन इनवर्स x sin x पीरियोडिक फंक्शन है. यस बच्चों एक बात समझ लो, जितने भी फंक्शंस का हम लोग इनवर्स लेते हैं ना, उसमें हमेशा उसका रेंज हम लोग फाइनल करते हैं. हम लोग उसको डिफाइन करते हैं कि इसका रेंज यही होना चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं होना चाहिए. इसलिए साइन इनवर्स हाफ का वैल्यू हम लोगों ने -π/6 से π/6 से सॉरी -π/2 से π/2 ही लिया है. तुम्हें ये वंडर होएगा कि एसएल लोनी में और कुछ और रशियन ऑथर्स की बुक में कॉट इनवर्स एक्स का रेंज में डिफरेंस है. कॉट इनवर्स एक्स के आंसर्स किधर से किधर आते हैं बच्चों बताओ? 0 से π. 0 से π बराबर ना. Yes. कॉट इनवर्स एक्स के आंसर्स 0 से π आते हैं एनसीईआरटी प्लस अपनी कुछ बुक्स. लेकिन बच्चों कुछ बुक्स में कॉट इनवर्स एक्स का रेंज -π/2 to π/2 भी लिखा हुआ है. ये भी जानना चाहिए. हम लोगों को 0 to π ही लेना है बच्चों, ठीक है? Yes. चलो Yes. ये कॉपी करने के लिए टाइम दिया था इसलिए बातें हो रही हैं. हो गया क्या? सर हो गया कॉपी. अच्छा ये और अर्णव नीचे के का बाद थोड़ा में, सा बाकी है. 2 मिनट. अच्छा ठीक है, आदित्य को कुछ पूछना है, तब तक उसका क्वेश्चन लेते हैं. आदित्य बोलो जल्दी. Aditya, Sir, in the second example, the long one where you've taken all of the trigonometric functions, yes, that one. Sir, can you explain what happened to tan inverse and cot inverse? इसका डोमेन R हो गया बेटा. Yes, sir. Okay, sir. Okay. अब कॉमन तो निकालेगा ही ना, दैट वे. आदित्य के बाद में तन्मय चौधरी फ्रॉम दादर. हाँ सर, मुझे सर ये लास्ट एग्जांपल में सर जो cos इनवर्स x को π/2 - थीटा कैसे दिया सर? नहीं, x cos π/2 - थीटा लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, इसका आंसर दो पहले. यस सर.
तो cos इनवर्स x कितना हो जाएगा? पाई बाई 2 माइनस थीटा ही होगा ना। ओके 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 सर, और फिर उनको सीधा ऐड कर दिया। ओके सीधा इस जगह लिख के ऐड कर दिया। ओके गॉट इट? यस चलो बच्चों जल्दी। सर हो गया। स्क्रीनशॉट डाला? प्रिसा Yes, स्क्रीनशॉट? sir, doing. बच्चों इसका मतलब ये हुआ जो क्वेश्चन अभी हम लोग कर रहे हैं 2A 2B और फिर उसके बाद एग्जांपल्स, उसमें हम लोग को डोमेन निकालना है, तो थोड़ा प्रैक्टिस इनइक्वालिटीज का तुम्हें करना ही रहेगा। कुछ क्वेश्चन ऐसे जाएंगे जो सिर्फ होमवर्क में रहेंगे, उनको आपको अभी टाइम मिलेगा तो ट्राई करके आंसर लिख देना है या वेरीफाई कर लेना है। मैं आंसर लिखूंगा, होमवर्क के हर प्रॉब्लम का आंसर बच्चों मैं लिख दूंगा, पहले ट्राई कर लो, ग्रुप पे डिस्कस कर लो। जो क्वेश्चन इधर करना होगा उसको हम लोग इधर ही देखेंगे। हम लोगों ने लॉगरिथमिक्स का डोमेन किया है बच्चों। लॉगरिथमिक्स के डोमेन में सिर्फ ये चीज एक्स्ट्रा जो तुम लोग कर चुके हो उसको रिपीट कर रहा हूं बच्चों। log x greater than log y, it implies x greater than y. True or false बच्चों? False. Provided that Provided base is greater than 1. Greater than 1. It depends. A greater than Depends on Depends base. on A. It depends on base. This is true Yes, for sir. a greater than 1. किया है ना बच्चों? Yes हाँ, sir, sir. ये correct है। इसका Then it vice is- versa भी correct है बच्चों। If x Yes, greater than y, तो log x greater than log y रहेगा। Okay? Yes. Similarly, x less than y होगा बच्चों। If A less than 1. A belongs is from less 0 greater to than 1. 0 but less than 1. Time change. a less than 1 मत लिखो, a between 0 and 1 लिखो। इसका वाइस वर्सा भी ट्रू है। x लेस देन y लोगे तो दोनों तरफ log ले सकते हो बच्चों। यहां से यहां इधर से स्टेप, जो इधर स्टेप ले रहे हैं उसमें हम लोग एंटी लॉग ले रहे हैं। लॉग को रिमूव करना मींस एंटी लॉग ले रहे हैं, और इधर से इधर वाला स्टेप है बच्चों, इसमें लॉग ले रहे हैं। Log ले। एंटी लॉग लो चाहे लॉगरिथमिक्स लो, लॉगरिथमिक्स लो चाहे एंटी लॉगरिथमिक्स लो, दोनों कंडीशन में बेस की बड़ी इंपॉर्टेंस रहती है बच्चों। बेस 1 से बड़ा होगा तो इनइक्वालिटी प्रिजर्व रहती है, अदरवाइज ये चेंज हो जाती है, राइट? फ्लिप हो जाती है। Yes sir. Yes. Yes, sir. Is between 0 and 1. This part you guys have done. And surprisingly बच्चों सारी चीजें करने के बाद भी सारी चीजें करने के बाद भी बच्चों एग्जामिनेशंस में प्लस क्लासरूम एग्जांपल्स में हम लोग केयरलेस मिस्टेक करते ही करते हैं, स्पीड की वजह से। स्पीड और एक्यूरेसी दोनों साइमल्टेनियसली किसी बच्चे का चले, ये थोड़ा टफ पार्ट रहता है। स्टार्ट करते हैं इधर से बच्चों एग्जांपल्स में। इसको मैं एग्जांपल 1 ही लिखूंगा इधर, ये होमवर्क का एग्जांपल है पहला, तो लोग चाहो तो इधर कर सकते हो। इधर होमवर्क लिख रहा हूं मैं ये, और क्वेश्चन क्या है? फाइंड द डोमेन ऑफ following functions. बच्चों अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 plus 1 upon under root. No doubt it's a revision what you guys have done, but you must do it. X square minus 3x minus 4, right? इसका आंसर लिख देता हूं, माइनस इंफिनिटी टू माइनस 1 यूनियन 4 टू इंफिनिटी। होमवर्क में है, जिसको टाइम ज्यादा मिलेगा इधर क्लास में वो इधर भी सॉल्व करके फाइनल कर सकता है। अंडर रूट 1 माइनस 1 बाई मॉड एक्स, जो होमवर्क नहीं लिखा उसको इधर ही करना है बच्चों। अंडर रूट मॉड एक्स माइनस 1 अपॉन 2 माइनस मॉड एक्स। Sir, if we do it in class, can you give us some time to solve? हाँ टाइम देंगे ना, बिल्कुल देंगे। टू द बेस 10 प्लस अंडर रूट एक्स प्लस 2। अच्छा, हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का टाइम है। ये तो होमवर्क हो गया, इसके लिए हर एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट का टाइम है। 2 मिनट वैसे बहुत ज्यादा होते हैं क्योंकि ये सब चीजें तुम लोग कर चुके हो, राइट? फिर भी 2 minutes for each. Just after 2 minutes I'll take the answer of this and I'll solve it. बच्चों go fast, start. I'll give more problems, but after solving this, more problems means it will be something like 15 questions क्लास में होंगे जो अलग अलग varieties में है।
Tanmay, you want to ask something, बच्चे? Else you No, sir. No, sir. go Sorry. you ahead. Yes, sir. All done. Siddharth. Good. सिद्धार्थ रीचेक कर ले बेटा. जिन लोग को चारों क्वेश्चंस हो गए, they can raise hand. Four students. Eight. $15. I assume 17 students have done. 18 हो गए अभी. $21. बच्चों पहला क्वेश्चन मैं वेरीफाई कर रहा हूँ, आंसर वेरीफाई करना. 1 minus 1 by mod x greater than equal to 0 implies 1 minus 1 is greater than equal to mod x. 1 by mod x. बराबर? Yes, तो sir. बच्चों आया Sir. mod x is greater than equal to 1. 1. Greater x than not equal equal to 0 है ना बच्चों? Zero. x not Yes, equal to sir. 0 हाँ है. सर जीरो होएगा सर. So answer आया minus infinity to minus 1 union 1 to infinity. 1 to बच्चों इसमें किसी को डाउट हो तो पूछ सकते हो, क्योंकि यहाँ ये कैलकुलेशंस तुम्हारा स्पीड में होना ही चाहिए. तुमने बहुत बहुत क्वेश्चंस किए हैं इस तरह के, फिर भी किसी को Yes, डाउट sir. है तो बात कर सकते हो. इज इट ओके? राइट. सर मेरा आंसर माइनस इंफिनिटी से इंफिनिटी आ रहा है सर. माइनस हाँ. 1 कैसे आया सर? mod x ग्रेटर देन माइनस 1, ये नंबर लाइन बना. mod x ग्रेटर देन 1 1 बना, माइनस 1 बना. 1 के बाद वाली कोई भी वैल्यू का मॉड ले, 1 से बड़ा ही आएगा.
-1 से पहले वाली किसी भी वैल्यू का मतलब -2 -3 ऐसा कुछ डाल इधर -1, लेकिन इसके बीच में कोई भी x डालेगा बताओ उसका मॉड 1 से बड़ा आएगा क्या? नहीं So, सर। बराबर है ना? यस सर। ऑलराइट, so, हाँ बोलो। तो मैंने पहले केस वाइज से मॉड एक्स को सॉल्व किया, फिर मैंने रूट का नहीं वो लेंथ पे जाना नहीं है बच्चों। बच्चों एक बात का ध्यान रखो, ये बड़े एलिमेंट्री इश्यूज हैं, इन एलिमेंट्री इश्यूज को थोड़ा रिवाइज कर देता हूँ। मॉड एक्स इक्वल टू 2 x का वैल्यू +-2, मॉड x इज इक्वल टू -1, नो सॉल्यूशन, मॉड x इज लेस देन इक्वल टू 1, x बिलोंग्स टू -1 to 1। बच्चों यहाँ से देख लो, नंबर लाइन से देख लो, अभी भी बनाया था ना नंबर लाइन, ये रहा -1 और ये रहा 1, -1 to 1। ये ड्यूरेशन में जितने भी नंबर्स आएंगे उन सबका मॉड इससे कम आएगा, 1 से कम आएगा। मॉड x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, बच्चों आंसर आएगा x इज बिलोंगिंग टू -∞ to -1 यूनियन 1 to ∞। ये डायरेक्ट ही ऐसे लिखने को आना चाहिए, केसेस लेके सॉल्व करना मींस टाइम वेस्ट करना है। बच्चों x² ग्रेटर देन इक्वल टू 4 लेस देन इक्वल टू 9, इसका स्क्वायर रूट लो, स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज +2 नॉट +-2 इज लेस देन इक्वल टू, बच्चों अंडर रूट x² कितना हुआ बताओ? Mod X. अंडर रूट x² इज नॉट x, इट्स mod x। mod x इज लेस देन इक्वल टू कितना आया बच्चों? 3। तो इसका सॉल्यूशन आएगा x बिलोंग्स टू 2 to 3। बच्चों 2 to 3 की तो कोई भी वैल्यू सेटिस्फाई करेगी। -3 to -2. -3 to -2, ये भी ध्यान रखना है। -3 to -2, आर यू क्लियर विद दिस? Yes sir. बच्चों इसमें अगर ये क्वेश्चन होता mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू -1 लेस देन इक्वल टू 1, तो बताओ इसको सॉल्व करने की जरूरत थी क्या? नहीं सर। ये तो रहेगा ही रहेगा, सॉल्व सिर्फ इसी को करना है। और इसका आंसर लिखा हुआ है बच्चों, mod x लेस देन इक्वल टू 1 का आंसर कितना आएगा? -1 to 1. तो इसका आंसर आएगा x बिलोंग्स टू -1 to 1। तुम चाहोगे तो ये नंबर डाल लो इस पे, 1 2 और ये 6। जिस स्टूडेंट ने ये गड़बड़ की है उसको पकड़ में आ जाना चाहिए, यहां देख के सारी सॉल्यूशंस लिखने हैं हम लोग को। अब बच्चों ध्यान दो, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो ये आ गया। सेकंड क्वेश्चन, दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ सेकंड, सॉल्यूशन 2, सॉल्यूशन 3, सॉल्यूशन 3। अच्छा यहां भी वही होगा, mod x -1 अपॉन 2 माइनस mod x ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब बच्चों ये नंबर लाइन जो है ना, ये नंबर लाइन बनाने से पहले मैं इसको ऐसा लिख दूं, mod x -1 अपॉन mod x -2 लेस देन लेस देन इक्वल टू 0। Yes sir. बराबर ना, माइनस साइन कॉमन ले लिया, मल्टीप्लाई किया तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाता है, पता है ना? हाँ सर। ऑलराइट, जिन बच्चों को ये चारों क्वेश्चन होते चले जा रहे हैं उनको हैंड रेस करते चले जाना है। 33 नंबर हो गया है अभी। ओके सो गाइस, इसको नंबर लाइन पे फिर मैंने ड्रॉ किया, ये आ गया 1, ये आ गया 2, राइट? बच्चों मुझे mod x, ये नंबर लाइन mod x की नंबर लाइन है, नंबर लाइन ऑफ mod x, नंबर लाइन mod x। अब बच्चों mod x की वैल्यूज निकालनी है, बताओ ये पॉजिटिव रहेगा नेगेटिव रहेगा? ये पॉजिटिव, बेबी का नेगेटिव, ये पॉजिटिव। बच्चों इसमें 1 शामिल होगा mod x से, यस और नो? Yes sir. 1 शामिल होगा, लेकिन mod x की वैल्यू 2 शामिल होगी क्या? नहीं होगी, डिनोमिनेटर में है ना। तो बच्चों हम लोग को चाहिए नेगेटिव, तो आंसर क्या आ जाएगा? mod x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 शामिल होगा, 2 शामिल नहीं होगा, लेस देन 2। बोलो बच्चों सही है? Yes sir. सही है. अब इसका आंसर लिखते हैं डायरेक्टली अकॉर्डिंग टू व्हाट वी हैव डन। x बिलोंग्स टू कितना है बच्चों? -2 to 1. Union 1 to 2 ओपन। देखो 2 पे ओपन है, 2 पे 2 इंक्लूड नहीं हो रहा है यहाँ भी। Yes. -2 पे ओपन है, -2 यहाँ इंक्लूड नहीं होगा, -2 अगर यहाँ डाल दोगे तो उसका mod 2 आ जाएगा जो कि नहीं है यहाँ पे, इसलिए इसका फाइनल आंसर ये आएगा। बच्चों समझ में आया क्या ये? किसी बच्चों को डाउट है? ऑलराइट। अब बच्चों ध्यान दो,
थर्ड क्वेश्चन इज डन। फोर्थ क्वेश्चन का आंसर मैं पूछने जा रहा हूं अर्णव अग्रवाल। अर्णव, व्हाट इज योर आंसर? Yes, sir. I got -2 to 0, 0 to 1. Yes, sir. And -2 will be closed brackets. And what about 1? Open bracket. ओपन ब्रैकेट। ओके, और कोई डिफरेंट आंसर बच्चों इसमें? नहीं सर। नहीं सर। नहीं सर। तुम्हें समझ में आया ना इसका चक्कर क्या है? इसका डोमेन Yes, क्या sir. निकलेगा बच्चों? इसका डोमेन क्या निकलेगा? Greater than equal to Greater than -2 x greater than equal to -2। इसका डोमेन निकालते टाइम में हमें क्या ध्यान रखना है? इसका डोमेन निकालते टाइम में 1/log 1 minus x to the base 10, राइट? इसमें पहली बात तो 1 minus x को ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। और बच्चों एक चीज और है इधर में, 1 minus x 1 भी नहीं हो सकता। हाँ सर। यस सर, x 0 नहीं हो सकता क्योंकि log 1 0 हो जाएगा तो 1/0 डिफाइन नहीं होगा ना। Yes, तो sir. 1 minus x is not equal to 1 भी होना चाहिए साथ में। इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन बच्चों, इन दोनों का कॉमन सॉल्यूशन, इंटरसेक्शन ऑफ दीज टू will give you the solution. What solution? This is your answer. This is your answer. I'll put a box here. सर log का Correct. प्रॉपर्टी यूज करके log 10 Yes, base sir. minus 1 minus x को बेस में डाल सकते हैं। yes हाँ, 1 minus x को बेस में भी डाल सकते हैं बच्चों। 1 minus x को बेस में भी डालते हैं, ऐसा किया करो, है ना? अभी देखो ये बोर्ड खत्म करके बात करते हैं। सब लोगों ने कॉपी किया क्या? Yes, sir. क्वेश्चंस थे Yes, तो मेरे sir. हिसाब से Yes, कॉपी हो sir. गए होंगे अभी तक। पिक्चर ले लो एक बार, पिक्चर डाल दो। ऐसा पिक्चर डाल दो बेटा इसमें। 59 students have done it. That's a good performance part actually. सर आप रिपीट कर सकते हो 1 minus x 1 क्यों नहीं हो सकता? देख 1 minus x अगर 1 बन गया तो log 1 कितना होएगा बता? 0। log 1 0 होएगा ना? Yes sir, 0. So और log 1 not log possible. 1 0 हो गया, log 1 0 हो गया तो 1/0 डिफाइन नहीं होगा ना? हाँ सर समझा। बराबर। तेरा आंसर ये आ रहा था मेरे को पता है, -2 to 0, -2 to 1। -2 to 1। yes sir, yes. हाँ सर वही है। बहुत सारे लोगों को आंसर -2 to 1 आ रहा है, -2 क्लोज टू ओपन 1 आ रहा है। Yes, उन लोगों sir. ने 1, उन लोगों ने 0 एक्सक्लूड नहीं किया होगा। बहुत सारे बच्चों को इसका ये रॉन्ग आंसर भी आता है। ऐसा पिक्चर हो गया, किसी को कुछ पूछना है? Yes, चित्रा, sir. Done. हाँ चित्रा बोलो, कुछ पूछना है बेटा। अच्छा, हैंड रेज हो रहे हैं, पूछने के लिए हो रहे हैं कि किसी और वजह से हो रहे हैं? विराज, यू वांट टू आस्क समथिंग? No, sir, वो आंसर लिखना था उसके लिए, मतलब आंसर है। चलो चलो, लोअर योर हैंड, लोअर योर हैंड, लोअर योर हैंड। बच्चों एक चीज बताओ कि मैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 थोड़ा लेट देता हूं, क्योंकि एक स्टूडेंट का कोई क्वेश्चन तो था अभी जिसपे मुझे रिएक्ट करना है। ध्यान दो, रिएक्शन बड़ा सॉलिड है बच्चों। और जो तुम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री जो किया है उसमें ये कितनी बार किया है? तुम cosec x को 1/sin x लिखते हो ना बच्चों? Yes sir. Yes, sir. सर हाँ। और बच्चों sin x को 1/cosec x लिखते हो? Yes. Yes Yes sir. सर rarely use किया है। पर यूज तो ऐसे कम किया। मैं तो इसकी होता ही है, यूज बहुत होगा। मान ले 1/cos x का x लिखा हुआ है, फिर प्लस sin x लिखा है, तो तू क्या करेगा? sin x को क्या लिखेगा? 1/cosec x लिखेगा, फिर LCM लेगा ना? हाँ सर, हाँ। ये हाँ सर करते हैं सर, यस सर, यस सर। करते हैं। अरे बच्चों एक चीज बताओ, कोई ये मना कर दे कि 10x को मैं cot x कभी 10x को मैं 1/10 x 1/cot x कभी लिखूंगा ही नहीं, तो वो तो जाती कर रहा है। अरे यार एक मिनट, हाँ 10x को 1/cot x में कभी लिखता ही नहीं, तो वो तो बेईमानी कर, झूठ बोल रहा है ना? लिखा है ना हाँ बहुत सर, बार। चीटिंग है सर, यस सर, हाँ लिखा है, किया है, हाँ सर किया है। बहुत बार किया। ये भी किया है, ये भी किया है, cot x को हाँ, सर, 1/10 x ये भी किया है। ये तो हर समय। ये ज्यादा हाँ ये तो ज्यादा, हाँ सर किया है तुम लोग सर, बोल रहे हो सर ये क्या कर रहे हो? सब किया है ना? किया भी किया क्यों बता रहे हो? किया है सब सर। किया है ना? क्या है? अच्छा एक चीज बताओ, कभी ऐसे लिखा है 1/1/1/x? कभी इसको x लिखा है?
Yes, हाँ sir, सर हर बिल्कुल समय sir. लिखा है। लिखा है सर। बोल रही ये कर क्या रहे हो सर आप? 1/1/x का x लिखा है, पूछ क्यों रहे हो? लिखते ही है ना, उसमें क्या दिक्कत है? हाँ अब एक यस बात बताओ, हाँ सर। ये फंक्शन f1 हो गया और ये फंक्शन f2 हो गया। फंक्शन चेंज कर बच्चों रहे हैं ना हम तो। इसका ग्राफ ये होगा यस सर f1 का 0 पे ग्राफ। नॉट डिफाइंड। हाँ सर 0 पे नहीं। एसिम्प्टोट आ जाएगा सर 0 हाँ पे। सर करेक्ट। f1 का ग्राफ ये वाला होगा एसिम्प्टोट कैसे? और बच्चों f2 का ग्राफ पता है ना, y is equal to x ही आएगा। यस Can we write 1/1/x is equal to x? No. सर व्हेन We x इज cannot नॉट write. We should not write. इसको यहां से यहां लिखते वक्त में बच्चों पहले डोमेन लिखना चाहिए। Say yes or no? यस सर सर इसके डोमेन में बच्चों, इसके डोमेन में 0 नहीं है। बताओ 1 के डोमेन क्या? बच्चों को पूछेगा fx is equal to 1, इसका डोमेन बताओ, तो r होएगा ना? हाँ सर। कैसे कैसे बोला r होएगा? अरे बाबा डोमेन का मतलब क्या होता है? x की वैल्यू जिसके लिए y डिफाइन हो। x कुछ भी लिखो, y का वैल्यू 1 ही आएगा ना बच्चों? यस सर यानी कुछ भी x लिख सकते हो, राइट? अब बच्चों मुझे बताओ, जो अच्छा ये तो हम लोगों ने किया ना, f by g का डोमेन कैसे निकालते हो बच्चों बताओ? f का डोमेन, g का डोमेन और दोनों का कॉमन सेट, ऐसे लिखते हो ना? यस सर Yes, sir. सर तो मुझे बताओ बच्चों, 1/1/x का डोमेन कैसे निकालोगे? इसका डोमेन हो गया r और इसका डोमेन हो गया r0 सिंबल बताया कि नहीं बताया मैंने? यस सर बताया 0 एक्सक्लूड करके। सेट ऑफ नॉन जीरो रियल नंबर। तो बताओ इन दोनों का कॉमन सेट क्या निकलेगा बच्चों? R0. इसमें 0 नहीं होगा, इसके डोमेन में 0 नहीं होगा। What do you Yes. say? इसके डोमेन में 0 नहीं होगा, f1 के डोमेन में 0 नहीं होगा। यानी यस सर इसका ग्राफ जो बनेगा ना, देखो बच्चों एक बात ध्यान से सुनना, अब ये स्टेटमेंट ध्यान से सुनना। पूरी मैथमेटिक्स में जब भी एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन का पहला स्टेप लिखोगे, आई रिपीट पहला स्टेप लिखोगे, फिर बोलता हूं, पूरा मैथ्स में एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन, बच्चों एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन के बगैर तो मैथ सॉल्व ही नहीं होता है, राइट? भले वो ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे हो, कैलकुलस पढ़ रहे हो, चाहे कोऑर्डिनेट पढ़ रहे हो, सब में आपको पहली स्टेप एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन वाली ही यूटिलाइज करनी होती है कॉन्सेप्ट के साथ। कोई भी एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन का स्टेप जो होता है बच्चों, उसमें सबसे पहले ओरिजिनल क्वेश्चन का डोमेन देखना चाहिए, उसका डोमेन देख के उसके बाद में सॉल्व करना चाहिए। बच्चों ऐसा नहीं होता कि तुम लोग बहुत बार स्क्वायर करते हो तो लिख देते हो कि नंबर ऑफ रूट्स बढ़ सकते हैं, जरूरी नहीं है ना बढ़ सकते हैं बच्चों। स्क्वायर करने से नंबर ऑफ रूट्स बढ़ सकते हैं, गारंटी नहीं कर सकते ना बच्चों। हो सकता है बढ़ जाए, हो सकता है ना बढ़े, बराबर है ना? Yes, sir. यस सर। हाँ, उसी तरह से वो स्क्वायर करना इज एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन एक्चुअली, राइट? सब बच्चे सोच रहे हैं यार स्क्वायर करने से तो बढ़ता ही है ना यार। हाँ एग्जांपल में सकते हैं? नॉट ऑलवेज सर, नॉट ऑलवेज, कभी नहीं, कभी बढ़ जाता है, कभी नहीं होता। कभी बढ़ भी जाता है, कभी नहीं भी बढ़ता है। वो एल्जेब्रिक तो मैं आपको यही कह रहा हूँ कि कोई भी एल्जेब्रिक मैनिपुलेशन करने से पहले बच्चों उसका डोमेन लिख देना चाहिए। अब आप बताओ 1/1/x और x, 1/1/x को x लिखना इज अ क्राइम बच्चों, क्राइम। इफ यू राइट इट विदाउट आस्किंग एनीथिंग यू विल बी हैंग। आई एम टेलिंग यू, आप लोगों का क्वेश्चन गलत जाने ही वाला है, पहले ही लिख दो। अच्छा बच्चों एक चीज बताओ मुझे तुम, कि बड़ा स्पेशल सा क्वेश्चन पूछा, इसको आऊंगा मैं, इस पे आऊंगा। पहले बताओ बच्चों इंटीग्रल एक्स का डोमेन क्या होगा बच्चों? इंटीग्रेशन आता है ना बच्चों, किया है ना? इंटीग्रल एक्स का डोमेन क्या होगा बच्चों? हाँ, इंटीग्रल एक्स का डोमेन क्या होगा? ऑल रियल नंबर। बच्चों ध्यान दो, इंटीग्रल एक्स का डोमेन होगा, इंटीग्रेट कर दो x² / 2 + c, बराबर ना? यस सर इसका डोमेन, अब राइट हैंड साइड का डोमेन ही तो निकालना है, बराबर ना? यस सर इंटीग्रेशन की डेफिनेशन क्या है? किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से ही आता है, बराबर ना? यही है ना? किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से ही आता है, बराबर? यही है, यही मतलब होता है ना? अच्छा बच्चों ठीक है, तो फिर एक बात बताओ, इसको मैं बॉक्स लगा देता हूँ, राइट? किस फंक्शन को डिफरेंशिएट करने से ये आता है, राइट? वही इंटीग्रल का डेफिनेशन होता है, और वो जो आंसर आता है उसका डोमेन हम लोग निकालते हैं। बच्चों एक फंक्शन लिख रहा हूं मैं इधर, y = x² / 2 + 1/x - 1 + 1/1 - x + c। बताओ बच्चों इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा?
बच्चों सर इंटीग्रल x dx से आएगा, वो दोनों कौन कैंसिल हो सकते हैं? बताओ बताओ, इसको डिफरेंशिएट करूं तो क्या आएगा? x ही आएगा ना? x ही आएगा, x ही आएगा। तो एक बात बताओ बच्चों, इसका डोमेन क्या है? इसका डोमेन क्या है? ऑल रियल सर नंबर x है नॉट क्या? इक्वल टू 1। नहीं सर, X ऑल not रियल नंबर equal to नहीं one आएगा है ना? सर। यस सर, x नॉट इक्वल है टू ना? 1। तो बच्चों एक बात बताओ, इंटीग्रेशन x dx का डोमेन लिखने से पहले x² by 2 + c तो आता है, लेकिन इस c में क्या क्या छुपा हुआ है ये तुम्हें पता है क्या? c में ये छुपा हुआ हो सकता है ना? अरे ये तो बाय द वे कैंसिल हो गया, कैंसिल हो गया, इस वजह से ये x आ गया। अगर ये कैंसिल नहीं हो रहा होता तो x कभी नहीं आता ऑब्वियसली। लेकिन इसका डोमेन, इसका डोमेन बच्चों राइट हैंड साइड का डोमेन क्या x बिलोंग्स टू R है? नहीं सर, नहीं है। बच्चों बताओ, इंटीग्रल x dx का डोमेन निकालना तुम्हारे बस की बात है? नहीं नहीं है। पता है ना क्यों नहीं है? क्योंकि ऐसा भी तो हो सकता है बच्चों कि राइट हैंड साइड में ये ना लिख करके ये लिखा हुआ हो। सब लोग ध्यान देना, मान लो ऐसा लिखा हो, ये इसकी जगह में ऐसा लिखा हो x² by 2 प्लस sec² x माइनस, छोड़ो ना, जो किया है वही करते हैं ना, प्लस sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x प्लस c। बताओ बच्चों, अगर ये लिखा हुआ रहे तब डोमेन क्या हो गया बच्चों राइट हैंड साइड का? -1 to -1 to 1 हुआ ना? यस सर। हाँ, x बिलोंग्स टू R नहीं होगा। तो बच्चों किसी भी इंटीग्रल का डोमेन डिफाइन कर सकते हैं क्या? नहीं, कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं कर सकते। हम लोग को पता नहीं कि इस कांस्टेंट में क्या क्या छुपा हुआ है। बच्चों ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो तुम लोगों ने बुकलेट सॉल्व करी है, बताओ उसमें 25 क्वेश्चन तो ऐसे होंगे, अपने आंसर की में जाके चेक करना। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की जो बुकलेट है उसकी आंसर की जाके चेक करना, उसमें 25 क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसमें ब्ला ब्ला ऐसा कुछ लिखा हुआ है, sin स्क्वायर 2π/3 प्लस x प्लस ब्ला ब्ला, ऐसे 5-6 टर्म्स लिखी हुई है और उसका आंसर 3 आ गया सॉल्व करने से। बताओ बच्चों है कि नहीं है? अरे सर 50 क्वेश्चन होंगे ऐसे तो सर। होंगे ना इस तरह के। तो बच्चों एक बात बताओ, अगर बीच में मान लो sec x आ गया, sec x आ गया, तो बताओ इसके डोमेन पे फर्क पड़ा कि नहीं पड़ा? यस सर, पढ़ा ना सर, पढ़ा। डोमेन पे फर्क पड़ा ना? नो डाउट ये 3 आ रहा है जो कि कांस्टेंट है, नो डाउट ये 3 आ। बच्चों 3 का डोमेन क्या होगा? y = 3 का डोमेन क्या होगा बताओ? माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी होगा ना? अरे बाबा, जब मैं पूछूं इसका डोमेन, बच्चों ध्यान दो, जब मैं पूछूं इसका डोमेन क्या होगा का मतलब तुम क्या समझा करो कि सर ये ग्राफ बनाते टाइम में x की कौन सी वैल्यू है जहां ग्राफ नहीं बनेगा। तो बच्चों बताओ y = 3 का ग्राफ बनाने के लिए तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत है? नहीं सर, सारी रियल वैल्यूज आ जाएंगी ना। इस तरह से सोच लिया करो अगर गड़बड़ हो रही है तो। बराबर है? यस सर। हाँ, तो बच्चों इंटीग्रेशन x dx इसका डोमेन ये गलत है, मतलब इसका डोमेन लिखना गलत है। ये क्या इंप्लाई करता है बच्चों? इसको मैंने बीच में क्यों लिया, मतलब ये लिखने के बाद में ये लेने की जरूरत क्या पड़ी थी? ध्यान से समझो। पहली बात तो ये समझो कि जो बच्चे रिकॉर्डिंग के बेसिस पर है उनको 3-4 दिन रिकॉर्डिंग नहीं मिला तो क्या होगा? वो बच्चे आगे से आगे नीचे डिप मारते चले जाएंगे। डिप मारना क्या होता है बच्चों? एक बात समझो कि 1000 बच्चे अगर पढ़ रहे हैं किसी एक बैच में, तो क्यों उसमें से 300 बच्चे अच्छा रैंक लेके आ पाते हैं? क्योंकि वो बच्चे डिसिप्लिन्ड नहीं होते हैं। अब जो बच्चे रिकॉर्डिंग पे डिपेंडेंट है, मान लो 3 दिन रिकॉर्डिंग नहीं मिला और नेक्स्ट लेक्चर आ गया, तो ये तो डिस्कशन खत्म हो गया, नेक्स्ट लेक्चर का रिकॉर्डिंग जाएगा ना। रिकॉर्डिंग देख के पढ़ना मीन्स अपना करियर खत्म करना है, ये बात समझ लो। डिस्कशन में जो मजा है उससे अच्छा कुछ है ही नहीं। मैं क्लास यहाँ क्यों लेता हूँ? इसीलिए तो लेता हूँ क्योंकि डिस्कशन हो जाएगा, प्रॉपर डिस्कशन हो जाएगा। बच्चों एक चीज बताओ, ये वाला प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम कहाँ एफिलिएट कर रहा है? अपने वो जो क्वेश्चन दिए थे 4 क्वेश्चन, उसमें तुम क्या कर रहे थे? एल्जेब्रिकली कैलकुलेट ही तो कर रहे थे। अरे अपने 4 क्वेश्चन जो अपन ने दिए थे, पहला क्वेश्चन होमवर्क में दिया था, उसके बीच में उठा करके ये कंसेप्ट घुस कहां से गया बच्चों? तो सब लोग ध्यान दो, 1/1/x को x लिखना इज क्राइम। ये बहुत जगह करोगे, मत करो। ये करोगे तो गड़बड़ होगा, राइट? कैसे गड़बड़ होगा? इसका डोमेन ये है और जो इसका ग्राफ और इसके ग्राफ में डिफरेंस समझ में आ गया ना? इसका ग्राफ कैसा बनेगा? ये f1 का ग्राफ है और बच्चों ये f2 का ग्राफ है, ये f2 का ग्राफ है। बोलो ये कि नहीं है? हाँ सर, 0 इंक्लूड हो रहा है। ये दोनों ग्राफ सेम है क्या? आइडेंटिकल है क्या बच्चों?
नो सर। नहीं। दो चीजें इक्वल नहीं है तो 1/1/x को x लिख कैसे सकते हो? इसको इक्वल टू ये x लिख कैसे सकते हो बच्चों? नहीं लिख सकते ना। Yes, sir. Yes, sir. कभी मत लिखो और जब लिखो तो क्या लिखोगे बच्चों? x is not equal to 0, this is equal to 0 but x is not equal to 0. अब बनाओ उसका ग्राफ, y equal to x का ग्राफ बनाओगे तो x not equal to 0 पहले ही लिखा हुआ है, सर्कल बना दोगे ना बच्चों? यस सर। हाँ सर। हाँ सर। तो बच्चों एक चीज बताओ मुझे, cosec x को तुमने 1/sin x लिखा, ये तो समझ में आता है, ये तो करेक्ट है बच्चों, ये तो करेक्ट है, क्योंकि इसका डोमेन क्या होगा बच्चों बताओ? इसका डोमेन क्या होगा बताओ? Minus infinity to minus -1. अरे कितने महीनों तुमने ट्रिग्नोमेट्री की है बच्चों को पता होगा ना ये तो? Yes, sir. अरे बाबा cosec pi, हाँ 2 सर, pi, आता ये सब है सर। डिफाइन नहीं होता ना बच्चों? हाँ अच्छा, हाँ इसका डोमेन क्या होगा बच्चों? 1 का डोमेन क्या होगा? 1 का डोमेन r हो गया, से यस और नो? यस सर। Yes, sir. और sin x का डोमेन, एक मिनट, 1/sin x का डोमेन लिखते टाइम में क्या करते थे बताओ? f/g का डोमेन कैसे निकालते थे? f का डोमेन निकालो, g का डोमेन निकालो, g जहां 0 होता है उसको बाहर निकालो। उसको एक्स्ट्रा। हाँ सर। यस सर। बच्चों इसका डोमेन क्या होगा? sin x 0 किधर किधर होता है? R minus n pi. दोनों सेम है बच्चों, दोनों सेम है, डोमेन दोनों का सेम है। इसका मतलब cosec x को 1/sin x लिखने में कुछ गड़बड़ नहीं है। cosec x का ग्राफ और 1/sin x का ग्राफ सेम रहेगा। इसका मतलब cosec x को 1/sin x लिखते टाइम में डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन बच्चों डरने की जरूरत यहाँ है, यहाँ है। बच्चों बताओ sin x का डोमेन क्या होगा? R होगा कि नहीं होगा? हाँ सर। R. बच्चों इसका डोमेन क्या होगा? इसके न्यूमरेटर का डोमेन R. 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 इसके डिनोमिनेटर का डोमेन क्या होगा? R minus n. n pi. और बच्चों इसका कॉमन डोमेन क्या होगा? कॉमन डोमेन क्या होगा इसका? R R minus n pi. n pi. बताओ 1/cosec x का ग्राफ तो sin x का ही ग्राफ बनेगा। आई रिपीट, 1/cosec x का ग्राफ तो sin x का ग्राफ ही बनेगा। मैं बना रहा हूं, देखो बच्चों यहाँ पे ये ग्राफ, आई एम सॉरी बच्चों, ये ग्राफ है बच्चों sin x का ग्राफ, राइट? यस सर। और ये वाला ग्राफ ध्यान से देखना, ये वाला ग्राफ बच्चों, ये सर्कल बच्चों, ये ग्राफ किसका है बता सकते हो? 1/cosec x. 1/cosec x. तो बच्चों बताओ 1/sin x को 1/cosec x लिखना करेक्ट है क्या? ये दोनों इक्वल हैं क्या? नहीं सर। ये करेक्ट नहीं है बच्चों, ये करेक्ट नहीं है, ये ब्लंडर है। ये ब्लंडर हम जब करते हैं तो एग्जामिनेशन मार्क्स उड़ जाते हैं, और बहुत बार उड़ते हैं, तुम देखोगे फ्यूचर में उड़ेंगे। बच्चों ये समझ में आया नहीं आया ये वाली कहानी? हाँ सर। Yes, sir. अब बताओ बच्चों 10x को 1/cot x लिख सकते हो? Yes, sir. नहीं लिख सकते। cot x को 1/tan x लिख सकते हैं। cot x को 1/10x लिख सकते हैं, लेकिन 10x को 1/cot x नहीं लिख सकते हैं। ऐसा कोई आंसर आ रहा है बच्चों? इसको मैं जो है, इसको तुम्हारे लिए, क्योंकि इसको समझ गया बच्चों, ये समझ में आया कि नहीं आया पहले ये बताओ तुम मुझे। हाँ समझा सर, ये समझा। बच्चों थोड़ा टाइम जरूर लग जाएगा, लेकिन इसको तुम खुद से समझो, मैं डिस्कस जरूर कर दूंगा इसको, लेकिन थोड़ा टाइम में सब बच्चों को। देखो इस बैच में ऐसा हो सकता है कि आउट ऑफ 200 कुछ 50 बच्चे या 100 बच्चे बहुत फास्ट जाते हैं, बाकी बच्चे में 100 बच्चे जो है थोड़ा स्लो जाते हैं। इट्स अ मैटर ऑफ चांस। हाँ सर। जो बच्चे थोड़ा स्लो जाते हैं ना, उनके लिए अपॉर्चुनिटी भी होनी चाहिए कि यार यहाँ जो समझा है वो क्या था, राइट, और यहाँ जो आ रहा है उसका आंसर मुझे क्या लिखना है। थोड़ा टाइम लगेगा, एकदम नहीं, और मैं ही बता दूंगा तो फिर सारा कुछ बताने से मतलब नहीं है, मतलब पढ़ाने से कोई मतलब ही नहीं है वो तो। फिर रिकॉर्डिंग देखो तो ज्यादा बेटर है, राइट। तो बच्चों ये चेक करना कि 10x को 1/cot x या cot x को 1/tan x, दोनों में से दोनों को सही करेक्ट लिख सकते हैं, या दोनों में से किसी एक को लिख सकते हैं और दोनों को नहीं लिख सकते। देयर आर नंबर ऑफ केसेस यू नीड टू लिख। तो नहीं लिख सकते, डोमेन चेक करना है, डोमेन ये तो चेक करना है। हाँ सर। बच्चों ये फटाफट से कॉपी कर लो। इसको किस सीक्वेंस में कॉपी करोगे ये मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं बता देता हूँ। ये ऐसे स्टार मार्क करके बताया था ना, स्टार मार्क करके स्टार मार्क। बच्चों ये स्टार 1 हो गया, ये सारा बोर्ड स्टार है बच्चों,
राइट। ये जो ना ये फालतू है, इसको इरेज करते हैं, इसको लिखने की जरूरत नहीं है। ये स्टार 1 हो गया और इस पर बॉक्स लगा देते हैं। ओके, ये बच्चों स्टार 2 हो गया। स्टार 2 में इसको नंबर 1 दे देते हैं और इसको नंबर 2 दे देते हैं और इसको नंबर 3 दे देते हैं। इसको भी बॉक्स में बंद कर देते हैं। ठीक है, ये F1 F2 का ग्राफ तो तुम बना ही लोगे, ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। और बच्चों ये हो गया तुम्हारा स्टार 1 2 एंड स्टार 3। बच्चों तीनों स्टार्स का मतलब एक ही है, एक जगह लिख दोगे तब भी समझ में आ जाएगा कि ये सारी चीजें हमें पढ़नी है। फटाफट से कॉपी करो एंड विशा प्लीज एक पिक्चर लेके इमीडिएटली ग्रुप पे तो डाल ही दो। अच्छा, यहाँ हम लोग को क्या लिखना चाहिए बच्चों? यहाँ पे क्या लिखना चाहिए? कंक्लूजन भी तो लिखना है। Cannot find range of integral x is not. Cannot determine the domain of integral x dx. A big क्वेश्चन मार्क। बच्चों ये नहीं लिखना चाहिए, नहीं डिफाइन कर सकते, वो तो आंसर हो ही गया। लेकिन एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि यार ये क्या ड्रामा है, बहुत अच्छी तरह से x²/2 आ रहा है, फिर क्यों नहीं लिख सकते? कॉपी करो बच्चों फटाफट। ये अर्नव ने हाथ ऊपर किया हुआ है। यस बेटा, गो अहेड। So I understood what you said कि we cannot write certain things like जो आपने स्टार मार्क किया है, but सर हम लोग actively ये सब sum solving के टाइम पे तो यूज कर रहे हैं। We are substituting sin x as 1 by cosec x and 1/1 by x as x. So should we stop doing that like that? That will. Should we stop doing it? You must stop it. You must. अच्छा तुझे ये क्वेश्चन पूछने में डर नहीं लग रहा कि यार इसको तुझे इमीडिएटली ये नहीं लगना चाहिए अरे यार ये अब तक किया अब तो कभी नहीं करना है, ये तो बहुत बड़ा ब्लंडर है। फॉर्चुनेटली आंसर आ गया, समझ यही है ना मतलब इसका बच्चा। हाँ सर, मतलब ये चमका ना कि ये गड़बड़ है। हाँ, अगर तुझे ये चमक जाए कि इस रास्ते से जाऊंगा तो इस रास्ते में बहुत सारे टाइगर्स हैं और 99% चांस ये है कि टाइगर किसी को छोड़ता नहीं है, जाएगा उस रास्ते में क्या? नो सर। बच्चे तो 100% रॉन्ग है, मतलब ये लिखना तो 100% रॉन्ग है, तो इस रास्ते में क्यों जाएगा? पूछने की जरूरत ही क्या है? अच्छा ओके ठीक है, काम बढ़ा दिया। अच्छा मैं तेरी प्रॉब्लम थोड़ी ठीक कर देता हूँ। तूने जो अब तक लिखा है ना बेटा, फॉर्चुनेटली उसका आंसर पीछे बुकलेट में करेक्ट तुझे मिल गया है, ठीक है, क्योंकि उसमें कुछ goof up नहीं था। अब जब क्वेश्चन आएंगे ना उसमें तुझे इसका goof up मिलेगा, राइट? तो वहां थोड़ा ध्यान दे देना। ओके सर, बुकलेट में भी हमारे तरीके से मतलब ऐसे ही पकड़ के सॉल्व करके आंसर लिखा है। हाँ, तो वहां फॉर्चुनेटली मिल गए ना आंसर पीछे। हाँ सर, वो goof up नहीं था वहां पे लिखने से ये जो आंसर्स आ रहे हैं वो आंसर्स अपने आप रिजेक्शन में चले जाते थे। आगे क्वेश्चन जब आएंगे ना, भाई आएंगे, आज नहीं आएंगे तो कल आ जाएंगे, राइट, नेक्स्ट लेक्चर में आ जाएंगे, जहां पे इस तरह की गड़बड़ियां बहुत सारी होंगी जिनको तुम्हें ध्यान रखना है, ठीक है? तो ये नहीं लिखना है, ये तो गारंटी हो गई कि इसको कभी लिखना नहीं चाहिए। लिखना है तो कंडीशन लिख के लिख दो। अच्छा बता, साइन एक्स को 1 by cos x लिखते टाइम में क्या लिखेगा? Sir, x does not belong to r minus x does not belong to n pi। n ये नहीं लिखेगा, does not belong to नहीं लिखेगा, try to understand। उसमें लिखेगा remember x equal to n pi will also be a solution if I get it in the end। इनिशियल इक्वेशन में लिख करके चेक करना पड़ेगा, क्योंकि इस इक्वेशन में तूने sin x को गायब किया है। अरे जिसको तूने गायब करके 1 by cosec x बना दिया, बता वहां x की वैल्यूज तूने रिजेक्ट मार दी कि नहीं मार दी? अरे you are rejecting some values when you are writing sin x equal to 1 by cosec x, you are rejecting 0 pi 2 pi 3 pi etc। yes sir, चेक करना पड़ेगा बाद में। तो sin x को जब 1 by cosec x लिख रहा है तो फाइनल आंसर जो आएगा उसमें pi 2 pi 3 pi कभी आंसर में आएगा ही नहीं, जबकि आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आ सकता है कि नहीं आ सकता है?
आ तो सकता है ना, आ सकता है हाँ। हाँ। तो इसलिए हमेशा ध्यान रखो कि जब भी देखो, एक बात समझो, 1/1/x को x लिखते टाइम क्या लिखोगे, x इज नॉट इक्वल टू 0, और ग्राफ बनाओगे ये वाला, बराबर है? यस और x को 1/1/x लिखते टाइम क्या ध्यान रखोगे कि जब x का ग्राफ मैं ये वाला बना रहा हूँ या इससे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, तो एंड में अगर 0 आंसर मुझे नहीं मिल रहा है तो ओरिजिनल इक्वेशन में 0 आंसर रख के मैं चेक जरूर करूंगा कि आंसर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बच्चों से यस और नो? यस सर Yes, sir. दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से। अक्षत, सर tan x को cot x भी नहीं लिख सकते और cot x को tan x भी नहीं। अरे tan x को cot x तो वैसे ही नहीं लिख सकते। हाँ सर, मतलब वो दोनों का डोमेन अलग अलग है ना। r minus 2n plus 1 pi by 2। tan x को cot x वरना कैसे लिखता तू? tan x मतलब को 1 by r cot tan x x लिख सकते हैं ना। 1 by cot tan x x को तो 1 by cot x ही लिख सकते हाँ हैं। ये सर वही ये सर वो स्लिप। Sir, 1 by cot x भी नहीं लिख सकते हैं ना? यस सर, हाँ सर, दोनों नहीं लिख सकते। दोनों अरे नहीं। नहीं पॉसिबल है ना। कम ऑन, ये जब मैंने छोड़ दिया तुम लोग के पास, ये जब मैं लिख रहा हूँ कि होमवर्क में छोड़ा है, तो इसको अभी डिस्कस मत करो ना। ओके ठीक है हाँ मीत बोलो बेटा। अर्नव, तेरा कोई क्वेश्चन बच गया? सर हाँ नहीं सर, नहीं सर मुझे लाइक वही पूछना था कि अगर मुझे tan x को 1 by cot x में लिखना है तो कंडीशनिंग क्या होगी, पर आपने बोला ना होमवर्क है तो सोचता हूँ। करो ना, ग्रुप पे डिस्कस। तुम्हारा जितना अच्छा डिस्कशन ग्रुप पे होगा ना, उससे तुम्हें बहुत फायदा होगा, समझ लो एक चीज। लेकिन ग्रुप पे पूरे दिन मत लगे रहो, कहीं शाम को आधा घंटा पूरे ग्रुप को देखो क्या क्या लिखा हुआ है, फिर अपना पॉइंट ऑफ व्यू डाल दो। मान लो 10 क्वेश्चन ग्रुप पे किसी ने डाले हैं, कैन समवन हेल्प मी, मैं देखता हूँ ना ग्रुप पे, तो उस टाइम में तुम्हें लगे कि 4 क्वेश्चन ऐसे आए हैं जिसमें कोई हेल्प मांग रहा है, और उसमें से 2 तो मुझे आते हैं, बच्चों उसको सोल्यूशन जरूर लिखना चाहिए। बताओ फायदा क्या? मानो तुमने सोल्यूशन लिखे, तुम्हें आते हैं, किसी और बच्चे को भी तो आते हैं, वो उसने नहीं डाले ना सोल्यूशन, राइट? तुम्हारा सोल्यूशन पढ़ के वो देखे कि यार कितना घटिया सोल्यूशन डाला है, राइट? तो वो क्या करेगा, वो अपना एक अच्छा सोल्यूशन डालेगा, बराबर? सीखने को क्या मिला? पूरे बैच को 2 मेथड सीखने को मिल गए, जबकि एक स्टूडेंट को एक भी मेथड नहीं आता था। समझ रहे हो? ये होती है ग्रोथ, जो टीचर बोर्ड पे नहीं कर सकता तुम लोग को, वो तो खुद मिलके करते हो। बच्चों, कैन आई रेज दिस? यस सर। Yes, sir. ऑलराइट। अच्छा ध्यान दो, जो हम लोग डोमेन रेंज की कहानी में चल रहे थे, उसी में अभी कंटिन्यू करेंगे। एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा एग्जांपल लेते हैं। जब ऐसे इन क्वेश्चंस में चल रहे हैं तो यार, लेकिन होमवर्क फिर सफर कर जाएगा, होमवर्क अभी आज मिल नहीं पाएगा। ठीक है, कोई इशू नहीं है, होमवर्क तो एक साथ किसी दिन 50 की जगह एक साथ 100 दे देंगे, तो क्या दिक्कत हो जाएगी, हो ही जाएंगे ना सारे। दैट इज नॉट द इशू आई गेस। बच्चों ध्यान दो, अगर ग्राफ बनाने के लिए दिया जाए y इज इक्वल टू 1, तो बताओ बच्चों, ये वाला ग्राफ बनता है ना? Yes, sir. Yes, sir. और बच्चों कोई ये वाला ग्राफ बनाने के लिए दे दे, sin x into cosec x, ये भी तो 1 ही होता है बच्चों। हाँ सर। हाँ सर 1 होगा। लेकिन यहाँ क्या लिखना पड़ेगा? x is not equal to 0, Not equal to 0. हाँ सर। 0 Yes, sir. n pi, Yes, sir. n pi, n pi, n belongs to क्या बच्चों? Integer। Yes, sir. अरे बाबा, माइनस पाई पे भी तो Yes, sir. cosec Minus x pi, y minus होगा ना? हाँ हाँ सर। सर। तो जो इसका N तो समझ। जो इसका ग्राफ कैसा बनेगा पता है? इसका ग्राफ भी y इक्वल टू 1 बनेगा, लेकिन क्या नहीं बनेगा? ये नहीं बनेगा। Yes, sir. Yes. हाँ ये बन गया तुम्हारा 0 पाई 2 पाई, 3 pi. इधर भी लिख दो, इधर Minus pi. -5। एंड सो ऑन। बच्चों बताओ, इंफिनिटी तक जाएगी कि नहीं ये जाएगी ये लाइन? हाँ सर। Yes, sir. हाँ सर जाएगी। जाएगी। बच्चों एक बड़ा एलिमेंट्री क्वेश्चन है, डू वी कॉल इट एज अ लाइन? No sir. नहीं, sir. Multiple Line line नहीं हुआ ना? segments. Multiple line segments. Multiple line segments. y equal to 1 is a line. This is Yes, not a sir. line. Yes. Yes sir. This is union of segments of lines. Yes, sir. Yes, sir. Segments of Multiple line lines. segments. मल्टीपल हो गया ना बच्चों? Yes, ये sir. Infinite line. पीरियड कितना है? पाई है। Yes, sir. पाई। पाई पे वैल्यूज रिपीट हो रही है, पाई पे रिपीट हो रहा है ना फंक्शन का ग्राफ। यस सर। हाँ सर। हाँ सर। हाँ। अच्छा बच्चों, ये भी तो पीरियोडिक है, ये भी तो रिपीट हो रहा है। हाँ सर, Y equal to actually 1 हाँ repeat सर। हो रहा है।
रिपीट हो रहा है लाइक उसका हाँ, पीरियोडिसिटी सर, मल्टीपल ऑफ हाँ सर सर कुछ भी हो सकता है इसका पीरियोडिसिटी। कुछ भी हो लेकिन सकता इसका है पीरियड कितना होगा, बताओ पीरियड कितना होगा? सर डिफाइंड नहीं है ना जीरो कुछ भी हो बताओ ना, सकता है। बताओ। zero- अरे कोई चीज रिपीट, अरे जीरो कुछ भी टू बोल रहे हो। इंफिनिटी। अच्छा रुको सर रुको कुछ रुको। भी हो सकता है पीरियड। एक मिनट गिव मी सम टाइम। रिपीट हो रहा है बराबर, यस तो सर कितने Yes, टाइम sir. बाद रिपीट हो रहा है? कैन यू डिफाइन दैट Fine. टाइम? नहीं सर ये डिफाइंड नहीं हो सकता। नहीं है एनी रियल नंबर, कुछ भी बोल रहा है। चल स्मॉलेस्ट रियल नंबर बोल, एनी रियल नंबर बोल, स्मॉलेस्ट रियल नंबर बोल जिसके वजह से रिपीट हो रहा है। जीरो जीरो। अरे स्मॉलेस्ट रियल नंबर हो ही नहीं सकता ना। अरे पॉजिटिव रियल नंबर बोल बोल रहे रहे हैं। हैं। रियल नंबर तू मान ले किसी जगह बैठा हुआ है, राइट, और जीरो डिस्टेंस ट्रेवल कर, तो वहीं बैठा रहेगा ना। हाँ सही बैठ रहे हैं। हाँ तो फिर कैसे? कैन यू डिफाइन द लीस्ट पॉजिटिव नंबर? कैन यू डिफाइन? प्लस जीरो प्लस बट यू कैन नॉट डिफाइन इट ना। अरे नॉट डिफाइन। अरे सुन ले मेरी बात, 1669 से लेके अभी तक कोई भी लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर डिफाइन ही नहीं कर पाया एक्चुअली। ओह समझ रहा है? हाँ समझ गए। 1669 जब कैलकुलस इनोवेट किया किसी ने, राइट, उसके बाद से अब तक कोई भी लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर डिफाइन नहीं कर पाया। तो बच्चे एक बात बता, अगर कोई पूछेगा कि व्हाट इज इट्स पीरियड, लीस्ट पॉजिटिव रियल नंबर, व्हाट इज दैट? इट्स नॉट डिफाइंड, दैट मींस इट्स Not पीरियड इज defined. नॉट डिफाइंड। फंक्शन पीरियोडिक तो है, रिपीट तो हो रहा है, but its period is not defined. One special question. This is one special question where the function is periodic, but its period is not defined. But have you understood this? यस सर थोड़ी थोड़ी चीजें ऐसे बीच बीच में हमारी रूटीन में आती रहेंगी, क्योंकि बैच अच्छा है तो इसमें आप इग्नोर नहीं कर सकते इन चीजों को। जैसे 10x को 1 by cot x लिखना है कि नहीं लिखना है। अब तू सोच, तेरे को 10 सेकंड में पकड़ में आ जाएगा 10x को 1 by cot x लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। बेटा एक बात बता, अगर ग्राफ sin x into cosec x का नहीं बना करके ये पहला ग्राफ हो गया, ये दूसरा ग्राफ हो गया, अगर ये वाला ग्राफ बनाना होता y equal to 10x into cot x, तो बता इसमें इसकी वैल्यू भी बनाती है, लेकिन x क्या क्या नहीं हो सकता? 0 नहीं हो सकता, π/2 नहीं हो सकता, π/2 नहीं हो सकता, π/2 नहीं हो सकता, नहीं हो सकता, ऑल n pi by 2 n pi by 2 all n π/2, वेरी गुड। n π/2 नहीं हो सकता, not equal to n π/2 where n belongs to the set of integers इंटीजर। इसका मतलब 10x को 1 by cot x या cot x को 1 by 10x लिख ही नहीं सकते बच्चों। यस गड़बड़ हो जाएगी ना, Yes, sir. गड़बड़ हो गई ना। हाँ सर सर बताओ सारे बच्चों। values। और बच्चों इसका ग्राफ जो बनेगा कैसा बनेगा पता है? इसका ग्राफ भी वैसे ही बनेगा, लेकिन ये ग्राफ जो बनेगा उसमें तुम्हें पता लग गया ना क्या होने जा हाँ रहा है? सर yes sir पीरियड श्रिंक हो जाएगा pi by 2 pi by 2 हाँ सर बोलो बच्चों, समझ में आया कि नहीं आया? समझा सर अच्छा, इसका पीरियड डिफाइन कर सकते हो नहीं कर सकते हो बच्चों? ये भी तो कर पीरियड सकते हैं इसका पीरियड कितना है? इसका पीरियड कितना है? pi by 2 π/2। इसका पीरियड कितना है? pi पाई। और इसका पीरियड कितना है? Undefined. defined पीरियड नॉट डिफाइंड। अच्छा, जो स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है ना पीरियड की, वैसे तो देखा जाए तो एक बात बताओ, इसका पीरियड 2π भी तो हो सकता है। यस सर 2π के बाद भी तो रिपीटेशन हो रहा है। हाँ सर मिनिमम Right, तो फंडामेंटल जो smallest- minimum. मैं लिख देता हूँ उधर। लीस्ट वैल्यू ऑफ पीरियड is called fundamental period. बच्चों तो फिर यहां लिखते हैं अपन लोग फंडामेंटल पीरियड नॉट डिफाइंड। बताओ बच्चों सही है कि नहीं है? इसका फंडामेंटल पीरियड कितना हुआ बच्चों बताओ? pi इसका फंडामेंटल पीरियड कितना हुआ बच्चों? pi by 2 अरे पाई कौन बोल रहा है? π/2 पे Pi by 2 pi by 2 π/2 गड़बड़ मत करो प्लीज बच्चों। इज इट ओके टू एवरीवन? किसी को डाउट है इसमें? नो सर नो सर। ऑलराइट, चलिए जरा बोर्ड कॉपी करो, इसके बाद 2-3 क्वेश्चंस मुझे लिखने हैं। वी स्टार्टेड 116 7-8 minutes in 1.5 hours left। बच्चों फटाफट। सर आज होमवर्क मिलेगा?
अरे यार डोमेन के क्वेश्चंस के बीच में अपन क्या है थोड़ा इमोशनली बीच में फंस गए एक्चुअली। अच्छा थ्री ईयर को सेकंड लेक्चर में करीब 40 क्वेश्चन मिल गए थे, तुम लोग को मतलब इसके बाद वाले लेक्चर में करीब 60-70 मिल जाएंगे, तो क्या फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा। 60-70 सर 60-70 फर्क पड़ेगा सर। सर मजाक कर रहे हैं। नहीं देखना ना, तुम आने दो ना नेक्स्ट लेक्चर, अभी दे देंगे तो आज कम क्वेश्चन सॉल्व होंगे। सर लेवल पहले वाले शीट जैसा ही होगा? वापस पूछो बेटा। लेवल पहले वाले शीट जैसा ही होगा? अच्छा नहीं, तुम लोग को लेवल वाली शीट से अलग मैं बता रहा हूँ 60-70 क्वेश्चंस फ्रॉम बुकलेट फ्रॉम मॉड्यूल। अच्छा, आई थॉट वो शीट वाले क्वेश्चंस आप वापस तो कुछ ज्यादा ही टफ थे सर। बहुत बढ़िया था सर वो वाला शीट। सर वो क्या टफ करें है। मजा आ गया कुछ सर। क्वेश्चन जो बुकलेट में से थे। बच्चों एक बात बताओ, उसको क्या कुछ क्वेश्चंस कहाँ से थे? बुकलेट से थे क्या? यस सर, कुछ अच्छा है ना, अच्छा हो गया ना रिवाइज, अच्छा हो गया रिवाइज सर। अच्छा रिवाइज, अच्छा रिवाइज ट्रिको तो बहुत अच्छे क्या थे। उसको रिड्यूस करूं क्या उसका लेवल थोड़ा? नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, पे रख लो सर थोड़ी नहीं देर सर, के लिए। बिल्कुल नहीं सर। उसके बाद थोड़ा बढ़ा। नहीं सर, सर अच्छा लगता है सर सॉल्यूशन या तो देंगे या डिस्कशन डिस्कशन एग्जैक्टली सर। डिस्कशन करके किसी एक बैच के साथ, और वो फिर रिकॉर्डिंग डाल दूंगा उसकी बेटा। ओके सर। हाँ बोलो बच्चों, ये इरेज करूं? ऋषा डाल दिएगा बेटा। एक मिनट सर प्लीज। सर ये थर्ड वाले एग्जांपल में आपने वो इंक्लूडेड वाले डॉट्स बनाए हैं सर। हाँ बेटा पाइवट वही वाले। सर हाँ बोलो ना। सर उधर x नॉट इक्वल टू 0 π/2 पाई होगा ना? अरे यार लिख दिया है वैसे मैंने एक्चुअली यहाँ आप एक्सप्लेन पे। जो चीज मैंने बिगाड़ दी ना उस चीज को यहाँ सुधार दिया है, ठीक है ना? यस ये देखिए ये लिखा हुआ नहीं है बच्चों, थोड़ा फास्ट प्लीज। सर हो गया आंसर, हो गया। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। बच्चों थोड़ा केयरफुल रहना इस क्वेश्चन में, राइट? बिफोर राइटिंग दैट क्वेश्चन आई एम आस्किंग अ क्वेश्चन। तो ये पेज का शायद ट्रिक नहीं भेजा है, ऐसे तो लिख के हो गया। नहीं ऋषा ने बोला है, उसने लिया है फोटो। तो ग्रुप पे नहीं यस सर, ले लिया, मैनिपुलेट करके नहीं ले लिया तो ले फिर लिया, तो डाला नहीं उसने ग्रुप पे नहीं डाला, डाल देगी वो। बच्चों ये इसका डोमेन नंबर क्या है मुझे पता नहीं, मैं राइटिंग में कुछ 4 अच्छा एक चीज बताओ, cos इनवर्स ऑफ 2x का डोमेन निकालना हो तो क्या करोगे? 2x बिटवीन -1 और 1 कर दोगे ना? Yes, sir. It's between minus half and -1/2 है ना? ओके क्वेश्चन है डोमेन ऑफ cos इनवर्स 1 minus 2 times mod x divided by 3 plus log x to the base mod x minus 1। अच्छा एक काम करते हैं, तुम्हें पता है ना क्या करना है? इसका डोमेन निकालो, इसका डोमेन निकालो, दोनों का इंटरसेक्शन निकालो। क्या बोलते हो, यही करना है ना? हाँ तो मैं 4-5 क्वेश्चन अभी करवाने की जगह 4-5 क्वेश्चन बोर्ड पे होमवर्क में दे दूं क्या डोमेन के? चलेगा चलेगा सर। चलेगा। That would be better I guess, है ना? क्वेश्चन नंबर 5। अरे इसको डिस्कस कर दूंगा ना, सबको सारे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा ना नेक्स्ट टाइम। हाँ सर। थोड़ा होमवर्क चलेगा डोमेन का। Sir, log of the first question should be question 5. अच्छा अरे और है ना? तो it doesn't make any difference, but notes बनाओगे तो Exactly. ठीक है? log of x square minus 3x plus 2 to the base x plus 1। बच्चों इन क्वेश्चंस को डिस्कस भले करो, लेकिन पहले खुद से एक बार आंसर निकाल के वेरीफाई करो कि तुमसे कहीं केयरलेस मिस्टेक तो नहीं हो रही है। क्वेश्चन नंबर 7 5 क्वेश्चन ओनली आई गिव। अंडर रूट ये सब तुमने पहले किया हुआ है, एक रिपीटेशन मुझे चाहिए।
5x minus x square, ये सब मैं डिस्कस करूंगा बच्चों नेक्स्ट टाइम, आंसर नहीं लिख रहा हूं इधर किसी का भी। क्वेश्चन नंबर 8, 1 2 3 4, बस बच्चों एक लास्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 8, अंडर रूट, डरना नहीं है, क्वेश्चन इजी है। log base 4 ब्रैकेट 2 log base 3 ब्रैकेट 1 plus log base 2 ब्रैकेट 1 plus log base 3x close minus half। डोमेन निकालना है चारों क्वेश्चंस में, राइट? और ये सारे क्वेश्चंस जो है तुम्हारे लिए होमवर्क है। ऐसा प्लीज एक बार पिक्चर इसका ले लो और डाल दो, ठीक है? बच्चों वैसे तो होमवर्क देने के लिए अभी आज भी मैं 20-25 क्वेश्चन तो होमवर्क पे तुम्हें दे सकता हूँ, लेकिन नेक्स्ट टाइम में एक साथ ही लेते हैं होमवर्क अपन, ठीक है? और कल रात को या परसों सुबह तुम्हें नेक्स्ट शीट मिल जाएगी, और या तो इसके सॉल्यूशंस मिल जाएंगे प्रीवियस शीट के, या फिर इसका डिस्कशन मिल जाएगा मंडे को, ठीक है? ओके सर।